ठीक है. सो बिफोर यू स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था, सेलेनियम इज नॉट अ यूआई टूल जहाँ पे यूआई मिलता है तुमको, उसका यूआई में तुम कुछ कर सकते हो. इट हैज ओनली सेट ऑफ लाइब्रेरीज. सेलेनियम इज ओनली सेट ऑफ लाइब्रेरीज which you get. You need to use those set of libraries and build your test cases. What are those set of libraries and where they are found? So when you go on this Selenium site, so you go on this Selenium download page. बताना जब दिखने लगेगा प्रॉपर, मतलब 150. ठीक है. दिस इज सो व्हेन यू गो ऑन टू दिस पेज यू हैव सेलेनियम स्टैंड अलोन सर्वर. दिस वाज एक्चुअली आरसी. डोंट डाउनलोड इट फॉर नाउ. इसका यूज विल बी रिक्वायर्ड इन ग्रिड. सो व्हेन वी डू ग्रिड वी विल डाउनलोड दिस. You need to download drivers for every browser that you want to run your test case to. So there are few things which is developed by Selenium HQ. This is Selenium HQ. मतलब Selenium के प्रोजेक्ट के अंडर कुछ चीज़ें डेवलप हुई है. And there are few things which are developed by third parties. So this Internet Explorer driver is developed by Selenium. You can download it now. So it will be in exe file. अगर आपको IE में रन करना है तो here there are language bindings. Which language? So these are the libraries actually. Which language you want to write your test case into, you need to download that particular library. So I want to write it in Java and current version is 3.4.0. I need to download this. जब ये download करोगे तो it will give you a zip file for now. And inside that zip file you will have lib folder. Inside that lib folder you will have all libraries. So this, when you extract it, सो ऐसे जिप्स आएंगे. तो पहला जिप जो मैंने बोला था आई एक्सप्लोरर. सेकेंड जिप जो मैंने बोला था वो ऐसे आएगा, सेलेनियम जावा 3.4.0. एंड व्हेन आई एक्सट्रैक्ट दिस जिप इट विल गिव मी दिस लिब फोल्डर. इस लिब फोल्डर में यू विल हैव ऑल लाइब्रेरीज, ऑल जार फाइल्स. सो जावा में लाइब्रेरी फाइल्स आर नथिंग बट जार. माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में .NET में लाइब्रेरी फाइल्स आर नथिंग बट .dll फाइल्स. So इसमें सब जार फाइल्स होंगे. You need to import all those jar files into your project and your Selenium will be installed on your Eclipse there. Library files कैसा import करते हैं we have already seen, आज वापस देख लेंगे. Then Safari driver, if you want you can download it. Selenium ID we have already done. Now there are third party bindings. So ये अलग अलग लोगों ने बनाई है. So these are not developed by Selenium. This third party browser is not developed by Selenium. So initially Mozilla जो था उसके लिए कोई अलग से ड्राइवर नहीं लगता था Selenium में. तो सिंपली ड्राइवर इक्वल टू न्यू ड्राइवर. सो ड्राइवर मैं बताता हूँ क्या था. ड्राइवर इज Selenium अभी के लिए, आपके लिए. सो जो Selenium का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे, जो ड्राइवर इज Selenium का ऑब्जेक्ट, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो वो उसके फायरफॉक्स का इनिशियलाइज करने के लिए कुछ ड्राइवर exe फाइल्स नहीं लगता था. बाय डिफॉल्ट सपोर्ट होता था Mozilla का. But 3.0 onwards they have started Gecko driver. So this Gecko driver is nothing but Mozilla का driver. Mozilla का exe file है which will open your Mozilla. Similarly, if you want to run Chrome, you need to download this. When you download it, everything will come in zip का format, and when you extract this zip, you will get exe for drivers. ठीक है. So there are multiples. Edge है, Opera है, Ghost, HTML unit driver. I'll tell you what is this. Safari driver, Windows Phone, all APM driver चाहिए. So all those things are there. ठीक है. So I have already downloaded it. It's there in my system.
व्हाट आई डू, आई क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. अगर नहीं ध्यान में होगा तो सी दिस न्यू प्रोजेक्ट. सो आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल, फॉर नाउ आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल जावा प्रोजेक्ट. ठीक है, मैंने सिंपल सेलेनियम जावा प्रोजेक्ट बनाया इन विच आई विल हैव दिस src फोल्डर एंड jre सिस्टम लाइब्रेरी. सो दिस लाइब्रेरीज कम फ्रॉम जावा दैट यू हैव इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी नथिंग. दिस सब जावा की लाइब्रेरी से jre. src इज एम्प्टी नाउ. हाँ, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है. व्हेन यू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, सिंस योर एक्लिप्स इट्स लिंक्ड विद jdk दैट यू हैव इंस्टॉल्ड, वो ऑटोमेटिकली पुल करता है. सो इट्स अ जावा प्रोजेक्ट, तो जावा की लाइब्रेरीज वो ऑटोमेटिकली लेता है. स्पेसिफिक मतलब जावा लिखने के बाद एक वहाँ पे अपन जैसा प्रोजेक्ट अभी जावा क्रिएट किया. हाँ, जावा प्रोजेक्ट. ओके, वहाँ पे इसे जावा स्पेसिफिक देना जरूरी है? नहीं, ये एक्लिप्स जो है ये सिर्फ जावा के लिए ही है. ओके. सो वो आप कुछ भी बनाओ, इट विल क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट. जावा फॉर एनी प्रोजेक्ट. हाँ, ऑटोमेटिकली गेट दोस लाइब्रेरी फाइल्स. लाइब्रेरी फाइल्स, यस, फॉर एनी प्रोजेक्ट इट विल गेट दोस लाइब्रेरी फाइल्स. आपको दो ऑप्शन देता है ना जब हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट, ऐसे करके आता है ना. न्यू पे जाते हैं जावा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट. मेरे में दो पे आ रहे हैं. तो मैं यहाँ पे सिर्फ जावा टाइप करूँगा तो इधर पे जावा प्रोजेक्ट आता है. मेरे पे दो ऑप्शन आ रहे हैं. क्या आ रहा है? न्यू पे. नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, जावा प्रोजेक्ट. हाँ, तो वो अगर हम प्रोजेक्ट लिखेंगे वो jre फाइल्स वो वाली सारी जार अभी वो नहीं पता मुझे प्रोजेक्ट में क्या करता है वो. प्रोजेक्ट में इवन सिंपल प्रोजेक्ट रहेगा वो. प्रोजेक्ट में फिर देन इट विल आस्क यू फॉर विच प्रोजेक्ट, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू क्रिएट. सो एंड्रॉइड, जावा. मेरे में यही पे पूछता है. हाँ, क्लिक ऑन दैट जावा प्रोजेक्ट. जावा प्रोजेक्ट ना. नहीं, प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करो, आपको यही विंडो आएगा. लिखा है जावा मेवन सीवीएस जनरल. जावा. मतलब ऐसे इसमें और भी बन सकते हैं. हाँ, बहुत सारे मेवन हम लोग यूज करेंगे. सो प्रॉब्ली दिस विल बी दी ओनली लेक्चर जहाँ पे हम लोग सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल ओनली क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट्स. बिल्ड टूल है, ठीक है. कैपेबिलिटी उसका मैं बताऊंगा. तो अभी सिंपल जावा प्रोजेक्ट बिकॉज सिंपली, और आज जो तरीका हम लोग सेलेनियम टेस्ट की स्क्रिप्ट लिखने में यूज करेंगे, वी विल नॉट यूज दैट सेम स्टेप्स अगेन, या सेम तरीका नहीं करेंगे. वी विल आफ्टर दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल ईच स्टेप विल मार्क अ स्टेप इन बिल्डिंग द फ्रेमवर्क. सो हम लोग अलग से एक लेक्चर नहीं लेंगे जिसमें सिर्फ फ्रेमवर्क बनाएंगे, बिकॉज फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे डिफिकल्टी क्यों आया था, उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, एंड वो फ्रेमवर्क का पार्ट कैसे बन गया. ठीक है. सो आई हैव क्रिएटेड SRC इज ऑलरेडी क्रिएटेड. सो मैं इसको बंद करता हूँ. सो आई विल क्रिएट अ पैकेज टू ऑर्गेनाइज माई फोल्डर स्ट्रक्चर. सो आई विल गिव पैकेज नेम आज डेट क्या है 27 मई. ठीक है. आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट पैकेज. नाउ यहाँ तक आई गेस सबको आता है. क्लास भी बनाना सबको आता है. एंड आई सिंपली क्रिएट अ क्लास. सो क्लास का मैं नाम दूंगा सिंपल सेलेनियम. सिंपल सेलेनियम. एक देख लो, फिर उसके बाद हम लोग ना 15-20 मिनट लेंगे, या फिर जब ये चली जाएगी ना तो हम लोग वो टाइम पूरा प्रैक्टिस को देते हैं उसके बाद. बिकॉज नहीं तो फोन करके मैं बहुत पूछेगी. उसके बाद फिर पूरा प्रैक्टिस को देते. तो प्रॉब्ली आज अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा लिखते हैं,
सो फिर यू विल बी एबल टू डू इट. आप मेरा मशीन लेके कर लेना अगर नहीं है मशीन तो. ठीक है. एंड आई एम एक्चुअली इंक्लूडिंग अ पब्लिक. सो ये चेक बॉक्स जो है दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्लूड पब्लिक वॉइड मेन वाला मेथड. अदरवाइज यू कैन राइट इट. सो आई एम इंक्लूडिंग इट. सो यू सी नाउ ड्राइवर जो होता है आपका जो टेस्ट केस स्टार्ट टू एंड रन करता है दैट इज ड्राइवर, वेब ड्राइवर जिसको हम लोग बोलते हैं. तो सेलेनियम जब स्टार्ट करना है तो वेब ड्राइवर कॉल करना पड़ता है. वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. वो ऑब्जेक्ट यूज करके ही पूरे के पूरे सेलेनियम के स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं. सो यू नीड टू कॉल दैट वेब ड्राइवर फर्स्ट. एनीथिंग इन जावा स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड. वी हैव लर्न दिस. सो मेरा एग्जीक्यूशन मेन मेथड में शुरू होगा. अगर मैं सीसो भी लिखूं मेन मेथड में तो वो मेन मेथड में आएगा. सो मैं अभी आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वेब ड्राइवर. इफ आई राइट WEV, सी कुछ नहीं आएगा. इट विल नॉट शो मी एनीथिंग, विच मीन्स द सेलेनियम इज नॉट इन माई प्रोजेक्ट राइट नाउ. टू एड सेलेनियम कैपेबिलिटी आई विल हैव टू एड ऑल दोज लाइब्रेरीज दैट आर जस्ट लिस्टेड. ठीक है. सो what I'll do, I'll right click on this build path. Build path is the way to add libraries. I'll go to build path, add external jars. So those always jar files, add external jars, and we'll navigate to this folder lib, select all, open. Automatically everything will get added here. उसमें और एक लाइब्रेरी था विच कम्स विद सेलेनियम जो यहाँ पे बाहर था. This. ये क्या चीज़ है लाइब्रेरी? ये सब सेलेनियम के ड्राइवर्स वगैरह के सब इनबिल्ट लाइब्रेरीज है. जो बाहर वो सेपरेट था वो भी उसकी लाइब्रेरीज थी. वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लिव फोल्डर के साथ और एक वो जार अलग से भी आती है. सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड एंड पुट एवरीथिंग हियर. और जिस JRE सिस्टम लाइब्रेरीज वाज बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट. आई क्लिक ऑन ओके. ये जो लाइब्रेरीज ऐड कर रहे हैं हम लोग को, इट इज जस्ट लाइक प्लगइन्स राइट? हाँ APIs कमांड्स है वो सारे के सारे इसमें ये लाइब्रेरीज में. सो जब मैंने ऐड किया ऑल दिस लाइब्रेरीज आई कैन सी हियर एंड दे आर एक्चुअली देयर ऑन माय सिस्टम एट दिस लोकेशन DE सेलेनियम लर्निंग ये वाला. बट रेफरेंसेस हम लोग ने ऐड किया. सो नाउ वी हैव जस्ट एडेड द रेफरेंस. सुन लो फिर उसके बाद करेंगे जब प्रैक्टिस रहेगा. So everything is added into my library. Now if I try WebDriver, see I am getting WebDriver. So इसके आगे जो IC साइन आ रहा है ना, I is an interface and C is a class. So किसको एक्सटेंड करना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है, वो इससे समझ में आता है. अगर आप वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर रहे हो, वेब ड्राइवर कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट. अगर क्लास को कुछ एक्सटेंड कर रहे हो, क्लास है तो उसको यू कैन एक्सटेंड. तो इससे समझ में आता है. दैट इज एन इंटरफेस. सर ये जो लाइब्रेरीज आपने ऐड की है हाँ वो मेन अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया ना? हाँ. Selenium to, हाँ प्रोजेक्ट में. सो मैंने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक किया, अच्छा इधर बिल्ड पाथ में गया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एंड ऐड एक्सटर्नल जार्स. ठीक है. आगे बढ़ू मेघा, बढ़ो ना आगे. मेरे को ये वाला समझ नहीं आया एक्चुअली. सब आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी देख लो. अभी देख लो, बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर इंडिविजुअल मशीन्स पे फिर करेंगे. ठीक है. अभी तक लाइब्रेरीज मैंने ऐड कर दिया. नाउ इफ आई टाइप वेब ड्राइवर, सो अब मुझे वेब ड्राइवर आएगा एंड वेर इट इज पुल फ्रॉम ORG ओपन सेलेनियम. तो लाइब्रेरी में कहीं एक सेलेनियम की लाइब्रेरी में ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये आया. सो तो इंटरफेस का जैसे हम लोग क्लास का जैसे बनाते थे ये अपना ऑब्जेक्ट, वैसे ही इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है. इंटरफेस है ये, तो उससे मतलब नहीं, फिलहाल अपने को कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में. तो इंटरफेस है. हाँ मैंने जस्ट बताया कि वो कभी क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू में वेब ड्राइवर इज एन इंटरफेस और क्लास. यू सॉ वेब ड्राइवर वाज एन इंटरफेस, सिंपली से इंटरफेस.
क्या है, क्या करता है, यू डोंट नो। तो इंटरफेस में कुछ डिफाइन किए होंगे, कुछ लाइब्रेरीज या कुछ मेथड्स, वो इम्प्लीमेंट करना हो। अच्छा, मतलब ये जो वेब ड्राइवर जो कीवर्ड है वो इंटरफेस मतलब जितने भी उसके प्रॉपर्टीज है वो सब फेच करके लाता है। हाँ, वैसा ही कुछ। हाँ, जितने भी लाइब्रेरीज में जितने भी फंक्शंस एपीआई जितने भी रखे हुए हैं वो सब एज इंटरफेस में पूरा लेके आता है। यस, एग्जैक्टली। तो पूरा रेफरेंस अगर उसको चाहिए तो उधर से उठाएगा वो। हाँ। तो मैं वेब ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। आई विल गिव दैट ऑब्जेक्ट नेम इज ड्राइवर। स्टैंडर्ड है, ड्राइवर ही नाम देते हैं लोग, हम लोग भी ड्राइवर देंगे। इक्वल टू, नॉर्मली हम लोग जब क्लास का करते थे तो न्यू वेब ड्राइवर करते थे, बट इफ यू रिमेंबर इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, तो उसके लिए अलग करना पड़ता है। तो द टाइप ऑफ ब्राउजर दैट यू वांट टू यूज, उस ब्राउजर के ड्राइवर से इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। सो इफ आई वांट टू यूज फायरफॉक्स तो फायरफॉक्स से करूंगा, क्रोम है तो क्रोम से करूंगा, आई है तो आई से करूंगा। आई है, अगर आई 11 या 10 है तो इट हैज़ डिफिकल्टी, उसमें आई 11 10 में सपोर्ट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। आई को मॉडिफाई करना पड़ता है थोड़ा मशीन पे रजिस्टर में, तो आई चलता है। फायरफॉक्स में लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो नहीं चलता है, मतलब थोड़ा वर्जन पीछे आता है। सेलेनियम जब निकलता है तो फायरफॉक्स के बाद 4 और अलग वर्जन निकाल देता है, तो 4 वर्जन नहीं सपोर्ट करता। क्रोम नॉर्मली लेटेस्ट लोगे तो क्रोम सपोर्ट करता है हमेशा। ड्राइव क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आई है तो लास्ट होता है, आई होता है। खाली आई के लिए ना थोड़ा मशीन्स में रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं आई का सिस्टम इसमें। अच्छा, लेकिन उसका कुछ वर्जन रहेगा ना कि ये हाँ। वर्जन पे सपोर्ट करता है। हाँ, उसके आगे आई 11 का सपोर्ट करता है, और आई 11 के बाद आया ही नहीं ना, कोई वर्जन नहीं नहीं। आया, आई तो बंद हो गया, तो आई 11 वॉज द लास्ट वर्जन। करता है सब माई मशीन करता है। हाँ करता है, सब आई करता है वैसे। तो ड्राइवर इक्वल टू न्यू, पहले कैसा था फायरफॉक्स, तो आई विल क्रिएट फायरफॉक्स, फिर क्रोम देखते हैं। सर हम फायरफॉक्स 2 करेंगे या 3 करेंगे? ये वेब ड्राइवर सिलेनियम 2 या 3? ये सिलेनियम 2 है, वेब ड्राइवर है ये। हाँ। सिलेनियम 1 वाज आरसी, सिलेनियम 2 इज वेब ड्राइवर। सिलेनियम 2 भी है और 3 भी है, अभी लेटेस्ट 3। हाँ, मतलब 2 का ऑनवर्ड्स वेब ड्राइवर है पूरा। तो जब 2 आया था तो उसको सिर्फ सिलेनियम 2 बोलते थे, तो अभी वर्जन चेंज होते रहते हैं। दिस इज वेब ड्राइवर। आरसी क्या चीज है? आरसी रिमोट कंट्रोल था, सिलेनियम 1.2 के पहले का वर्जन जो था दैट वाज आरसी, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग था। अच्छा। तो अभी ऑफ द टॉपिक बताता हूँ मैं, होता क्या, सेलेनियम आर्किटेक्चर काम कैसा करता है। आपका ब्राउजर कुछ भी आप एक्शन करते हो ना, तो इंटरनली ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है। जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो अल्टीमेटली पीछे जो है ना एक जावास्क्रिप्ट कॉल होता है जो आपका एक्शन परफॉर्म करता है। तो सेलेनियम कुछ नहीं करता, सेलेनियम उसी जावास्क्रिप्ट को इन्वोक करता है अच्छा। एक्चुअली। तो पुराना आरसी में क्या होता था कि जब आप एक कमांड लिखते थे ना, तो वो कमांड को जो ब्राउजर पे जाता था वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में जाता था, और उसको जावास्क्रिप्ट में आपका कमांड जावा में आपने लिखा है और उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो इंटरनल एक सर्वर होता था विच वाज आरसी, रिमोट कंट्रोल आरसी सर्वर, जो हम लोगों ने देखा ना स्टैंड अलोन सर्वर, वो सर्वर होता था। तो कमांड आपका जावा, पाइथन, रूबी किसी में हो, आरसी सर्वर उसको कन्वर्ट करता था और फिर जावास्क्रिप्ट भेजता था किसको, ब्राउजर को। अच्छा। और फिर ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता था डायरेक्टली। अच्छा। तो उससे क्या होता था, यूजर एक्शंस परफॉर्म नहीं होते, ऑल यूजर एक्शंस कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के पास है वही होता था। वेब ड्राइवर ने क्या किया, वेब ड्राइवर बीच में कन्वर्ट नहीं करता है। वेब ड्राइवर वो कमांड जो है वो डायरेक्टली ब्राउजर्स को भेजता है, एंड ब्राउजर का जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, जैसे यूजर करता है, जब यूजर क्लिक करता है तो वेब ड्राइवर का ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है। तो सेलेनियम भी वैसे ही करता है वेब ड्राइवर, जब वो कमांड एग्जीक्यूट करता है तो डायरेक्टली ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट जो होता है ना वो एग्जीक्यूट होता है, ना कि जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट करके, मतलब कमांड कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में जाके फिर ब्राउजर को कॉल करता है। अच्छा, तो जो इंटरमीडिएट था आरसी वो निकल गया। अच्छा, तो एंड डायरेक्टली अभी डायरेक्टली सेलेनियम जो है वो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है। अच्छा। अभी तो बीच में सर्वर ऑन करना पड़ता था, जब आरसी रन करते थे ना सर्वर ऑन करना पड़ता था। वो सर्वर का काम सिर्फ यही था, वो जावास्क्रिप्ट हाँ, में कन्वर्ट करता था। तो उसका जो इनपुट होता था वो वेरियस अदर लैंग्वेजेस में आता था, और उसका आउटपुट जो होता था वो एक जावास्क्रिप्ट होता था जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। हाँ, वो ब्राउजर का वो डायरेक्टली पूछ लो। चाय so, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। तो कुछ चलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता था, वो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट करके भेजता था ना, तो बहुत सारे यूजर एक्शंस नहीं कन्वर्ट होते थे, स्क्रॉल वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे थे, वो कन्वर्ट नहीं होते थे। नहीं, और वेब ड्राइवर आने के बाद वो यूजर एक्शन डायरेक्टली रिलेट कर पाता है, इसलिए होते हैं। तो इसलिए मोबाइल वगैरह पे
अलग अलग होते हैं, एप्लीकेशंस अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। तो मैं सब ब्राउजर का जब जावास्क्रिप्ट रीड होता है तो वो ब्राउजर कर सकता है, बट वो ऐप पे जाएगा तो ऐप माइट हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट या डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग दैट जावास्क्रिप्ट, तो ऐप पे नहीं चलता था। अभी ये क्योंकि डायरेक्टली ब्राउजर या डायरेक्टली एप्लीकेशन को जाके इन्वोक करता है, इसलिए इसमें चलता है। हाँ, वेबसाइट जो होते हैं वो जावा बेस्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो फिर कोई यूज ही नहीं करता। क्योंकि इनपुट तो वो सारी मतलब लेके कौन से भी वेबसाइट लेंगे तो स्क्रिप्ट हम जावा में करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, रूबी, पाइथन, पीएचपी करता था, आई डोंट नो अभी करता है कि नहीं, सी शार्प, जावा, किसी भी लैंग्वेज में आप आपका ये लिख सकते हो। हम लोग जावा में लिख रहे हैं, साइट मेरा किसी भी लैंग्वेज में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। साइट मुझे, मैं वही बोला था ना आपको, मुझे साइट फ्रंट एंड में क्या दिखता है, सिर्फ HTML दिखता है, सिर्फ डॉम स्ट्रक्चर दिखता है, मुझे सिर्फ उसी से काम है। ओके, मुझे वो बैकएंड टेक्नोलॉजी उसका क्या है, PHP में लिखा गया है या .NET में लिखा गया है या वो JSP है या सर्वलेट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रंट पे काम करता हूँ। हाँ, ब्राउजर जो दिखता है मैं उसी पे काम करता हूँ। ठीक है। ये हाँ, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ से लाइन मेरा गायब हो गया। विंडो में जाओ, विंडो में आपको एक्सप्लोर मिल जाएगा। शो ये सब अभी होल्ड करो, सब होल्ड करो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मेरे को फायरफॉक्स का ड्राइवर क्रिएट करने के लिए सिंपली फायरफॉक्स इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स करना था। फायरफॉक्स इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। हाँ हाँ, तो ये चल जाता था। तो अगर मैं इसको अभी रन करता ना तो ये डायरेक्टली मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर खोल देता। सो जब मैं इसको, नाउ दिस इज सिंपल जावा क्लास, आई रन इट, जावा एप्लीकेशन। अब ये मुझे द पाथ टू ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट बाय वेब ड्राइवर डॉट गीको ड्राइवर। इफ यू रिमेंबर, अभी हम लोग ने गीको ड्राइवर डाउनलोड किया था। सो ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटेबल, ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मतलब ड्राइवर exe का पाथ जो है, इट मस्ट बी सेट बाय दिस वेरिएबल। सो ये वेरिएबल में मुझे एक पाथ देना पड़ेगा विच इज माय गीको ड्राइवर का पाथ। सो राइट नाउ मेरा गीको ड्राइवर कहाँ पे रखा है, मैंने ये फोल्डर में रखा है। सो ये एक हैश मैप जैसा है जिसमें आप एक की वैल्यू कह रहे हैं। एक की है विच इज दिस, जैसे नेम इज इक्वल टू मेगा, तो नेम इज की, वैल्यू इज मेगा, तो दिस इज की। इसके अगेंस्ट मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगा जो उसका पाथ रहेगा ड्राइवर का। सो वो देते कैसे है, सिंटेक्स याद रखना, पूछा जाता है इंटरव्यू में। सिस्टम लेवल पे सेट होता है वो चीज़, तो आपके सिस्टम को पता चल जाएगा कि कुछ एक की में ये वैल्यू है। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी दिख रहा है, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग की, इसमें मुझे क्या वैल्यू देनी है, की क्या है मेरा, ये है। और उसका वैल्यू इसने क्या बोला है, पार्ट टू दी एग्जीक्यूटेबल। तो मैंने वो जहां पे भी रखा रहे। सो हाँ, वो जावा में या तो डबल स्लैश दो या तो बैक स्लैश दो, ऐसा ऐसा। तो मैं डबल मतलब कुछ भी कर सकता, वो ये वाला सिंपली ऐसा वाला नहीं लेता है, वो उसके जैसा इंटरप्रेट करता है, लिनक्स और उसके जैसा। डबल स्लैश पाथ के लिए डबल देना, ठीक है, नहीं तो एरर देगा वो। सो मैंने इसका गीको ड्राइवर तक का पाथ दे दिया उसको, और उसका प्रॉपर्टी एक किस जा रहे, ओके।
उसको मैंने किस में सेट किया, गीको ड्राइवर में। ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है वेब ड्राइवर के लिए। क्रोम के लिए कुछ अलग रहता है, तो की अलग रहेगा, आई के लिए कुछ अलग रहेगा, ठीक है। की कुछ और रहेगा कि वैल्यू कुछ और रहेगा? की और वैल्यू दोनों होते हैं। ये गीको ड्राइवर है। मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, मुझे ओके। पुणे जाना है, एक ओके। फंक्शन है छोटा सा, तो ये बस इसको ना जब आप बंद कर दो ना, हाँ। यहाँ से ऑफ कर देना, ओके। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना, मैं आके बाद में उसको सेव करूँ। Sure. चलो बाय बाय। बाय एवरीवन। ये गीको ड्राइवर, गीको ड्राइवर मीन्स फायरफॉक्स ड्राइवर। अगर ये क्रोम होता तो यहाँ पे क्रोम आता, आई होता तो यहाँ पे आई आता। ओके, तो ये फायरफॉक्स के लिए सिर्फ ये फिर फायरफॉक्स के लिए। तो की और वैल्यू दोनों चेंज होगा। की आपका आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन सा ड्राइवर का एग्जीक्यूटेबल का पाथ दे रहे हो। तो आप जब यहाँ पे ये लिखोगे तो सिस्टम को पता चलता है कि फायरफॉक्स के ड्राइवर का एग्जीक्यूटेबल पाथ है। यहाँ पे जब मैं क्रोम लिखूंगा तो सिस्टम को पता चलेगा कि क्रोम के एग्जीक्यूटेबल का पाथ है। और यहाँ पे जब ये ड्राइवर क्रिएट करोगे तो वो ये सिस्टम में से रीड करता है। फायरफॉक्स है तो वो ये वैल्यू रीड करेगा सिस्टम में जाके, ये वैल्यू रीड करेगा और इस वैल्यू में जो पाथ दिया हुआ है उस पाथ को इससे मैप करेगा, तो वही ब्राउजर ओपन करेगा वो। तो इसको क्या बोलते हैं, पाथ सेट करना हाँ, और ड्राइवर। ड्राइवर्स ये स्टैंडर्ड है, सिंटेक्स है, नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ व्हेन आई रन दिस, भगवान करे रन हो जाए, hope my Firefox is not latest. मेरा आईडी भी चलता है लेटेस्ट में, क्या बहुत एरर आता है। I was able to open my Firefox. So ड्राइवर से मैंने Firefox को ओपन किया। अब मुझे सारा का सारा एक्शन जो इस ब्राउजर पे करने का है वो उसी ड्राइवर से होगा, जो ड्राइवर मैंने अभी क्रिएट किया है। और एट द एंड ऑफ द टेस्ट केस ओनली आई विल क्लोज द ब्राउजर। अगर मैंने ब्राउजर ड्राइवर क्लोज कर दिया बीच में और मैंने वापस चाहा कि वही सेशन जो है वो कंटिन्यू, मतलब मैंने एक स्टेप परफॉर्म करने के बाद ड्राइवर क्लोज कर दिया और फिर मैंने नया ड्राइवर बनाया, तो नया ब्राउजर खुलेगा, ये सेशन में नहीं होगा। सो अगर आप इसी ब्राउजर इसी सेशन में कुछ करना चाहते हो तो आपको थ्रू आउट जो ड्राइवर अभी आपने क्रिएट किया है वही ड्राइवर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई वॉज एबल टू ओपन माई ड्राइवर। नाउ फ्यू कमांड्स ऑफ सेलेनियम। रिमेंबर हम लोगों ने आईडी में ओपन करने के लिए क्या यूज किया था, यूआरएल। आप नहीं थे तो आपसे मैं नहीं बोलूँ। ब्राउजर ओपन करने के लिए क्या किया था, क्या कमांड था? हाँ, लेकिन साइट ओपन करने के लिए क्या था? ओपन करके वो जो यूआरएल रहते हैं उसको टारगेट सिर्फ ओपन था और सिंगल स्लैश था, याद आया? ओपन कमांड था, नहीं कोलन था, सिंगल स्लैश था। तो होम मतलब वो इस पे बेस यूआरएल पे लेके जाता था। बेस यूआरएल को स्लैश करके कुछ डालोगे तो वो यूआरएल पे लेके जाएगा, बट कमांड वाज ओपन। मैंने तो बोला ओपन मैंने नहीं बोला ओपन। ठीक है, कहाँ से थोड़ा आगे पहुंच गया एक्चुअली। सो नाउ हर एक्शन होगा वो ड्राइवर से होगा। ड्राइवर डॉट साइट ओपन करने के लिए इज गेट, तो कहाँ से गेट बोल रहा था तो मैं थोड़ा आगे पहुंच गया। गेट स्ट्रिंग वैल्यू, आई कैन राइट हियर यूआरएल। सो अब मेरा साइट का यूआरएल क्या था? रिमेंबर होम पेज ओपन करने का, रिमेंबर हमेशा प्रोटोकॉल इज नेसेसरी। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं डालोगे, सिंपली ये डालोगे तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सो दिस इज माय, this will open URL. Now I need to click on login link, enter username, enter password,
click on login button and verify whether I am logged in or not. Best practice is you identify steps before you start writing your test case. So I have identified steps, 5 steps है. Next step should be to identify all your elements before you start writing your test cases. ताकि आप एक कमांड लिख के फिर वापस आइडेंटिफाई करने जाओ, फिर एक कमांड लिखो फिर वापस आइडेंटिफाई करने, वैसे मत जाओ. You know which all elements you need, so you verify beforehand. Means Locators, XPath और name ID जो कुछ भी. होप तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया रहेगा एंड यू ऑल नो. हाँ ओपन नहीं होगा क्या वो डायरेक्टली? नहीं, अभी तो हम लोग देख रहे थे एक्सपर्ट सिर्फ. नहीं, अभी मैंने रन नहीं किया. मैं अभी XPath निकाला. अभी मैं रन करूंगा तो ओपन हो जाएगा. आई डोंट वांट टू शो इट. वो हो जाएगा ओपन. कॉन्फिडेंस उतना तो होना चाहिए यार. उतना तो बनता होना है. ही चाहिए. उतना नहीं रहा तो फिर तो इज्जत ही नहीं रह जाएगी. नहीं सर, बहुत भरोसे आप पे. थैंक गॉड. बहुत अच्छा सिखा तारीफ मत करो ऐसे, सर को मत चढ़ाओ. सर प्लेसमेंट भी करवाते हैं. सच्ची काश है मेरे हाथ में होता. मैंने एक्चुअली मेरा बहुत लोगों का करवाया है. मतलब मैंने रेफरेंसेस दे के वो लोगों को पढ़ा के मार के, मतलब मैं फोन कर पढ़, ये पढ़, वो पढ़, ऐसे पढ़, वैसे पढ़, करवाया है. फिर ऐसे करवा. लेकिन फिर कैसा, वो आप 1 या 2 लोगों के साथ ही कर सकते हो और सबके साथ नहीं कर सकते वो चीज़. आप बैच के साथ तो कर सकते हैं. बैच के साथ मैं मैसेज डाल सकता हूँ बस कि अरे ये असाइनमेंट करो. सो अभी मैं लोकेटर्स आइडेंटिफाई कर लूँगा. ओपन हो जा. सर आपको डाउनलोडिंग हो गया क्या? नहीं, बहुत स्लो चल रहा है नेट. हाँ वो मैं पहले ही बताया, कुछ नहीं चल रहा. इससे अच्छा मैं अपना ही नेट यूज़ करता हूँ. वो बहुत पहले से वैसे ही चल रहा है. इससे अच्छा अपना हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं. फटाक से ओपन हो. ठीक है. सो राइट क्लिक. ये आप थे ना इसके साथ में. सो मैंने आप नहीं थे, बट आपको XPath और ये सब हाँ, मैं भी लोकेटर्स के. मेरे लेक्चर में आप लोकेटर्स का टाइम थे. सो इसका अब इसमें ना क्लास है ना आईडी है. टाइटल है लॉग इन टू योर अकाउंट. थोड़ा सा जूम कर दो प्लीज. अब ये नहीं जूम होगा. अच्छा मैं मशीन का रेजोल्यूशन जूम कर सकता हूँ क्या? ये नहीं जूम होगा. ठीक है. ये वाला टैग है, इसमें ना XPath कुछ भी नहीं है. सो मीन्स इसका मुझे डायरेक्ट लोकेटर नहीं मिल रहा, तो मुझे इसका XPath लेना पड़ेगा. ये है एक टाइटल है, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस टाइटल. ये टाइटल कैन चेंज एनी टाइम, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेक दिस टाइटल. सो व्हाट आई डू, इसके ऊपर एक का आईडी है विच इज यूनिक, कस्टमर इन्फो. तो मैं उसका आईडी लेके आई विल मैप द XPath. इसमें मैं कर सकता हूँ. सो div@id is equal to customer info. div@id equal to बराबर. इस div के अंदर there are 2 A's, so I can write relative inside relative. ये UL और LI I will skip. Relative inside relative I'll write A directly. और क्योंकि 2 A है but I only required this first A, तो वो पहला ये लेगा. अगर मुझे ये लेना रहता तो मैं A2 लेता या इंडेक्स लेता. हाँ वो A2 लेता, बट आई रिक्वायर दिस फर्स्ट वन, तो आई कैन सिंपली राइट A. नाउ आई विल वेरीफाई वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट.
क्या करना था? राइट, तुम लोग को बहुत सारा तरीका है बट आई प्रिफर आईडी। आईडी में मैं टारगेट में डाल के हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। आप जैसे यूनिक एलिमेंट फाइंड करते हो, मेरे को एक बार ये तो कि यूनिक कैसे पता चलता है वो यूनिक सामने से आपने कहा? प्रैक्टिस मतलब आप जैसे हम देखो, ऊपर search button अब पे आप find एक कर एक सकते हो। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग समझो, इसका आईडी क्या है? कस्टमर इन्फो। मतलब एक ही टाइम में। ये एरिया के अंदर सिर्फ कस्टमर इन्फो आ सकता होगा, इसलिए उसने डेवलपर ने उसका नाम कस्टमर इन्फो दिया होगा। बट वैसे वो ऊपर वो जो सर्च वाला बटन है वहां से भी तो हम कर सकते हैं। कहाँ से? ऊपर सर्च का बटन। ये हाँ, बट आपको पता कैसे चलेगा कि कस्टमर इन्फो है या क्या है? आप कस्टमर इन्फो वहाँ टाइप करो और सर्च करेंगे अगर। हाँ, लेकिन अभी मेरे को दिख रहा है कस्टमर इन्फो, पता है इसलिए। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो नहीं, हम हिट एंड ट्रायल से ऊपर वाला एक लेंगे जैसे वो चेक कर ले। तो बोल रही एक्सपर्ट लिखने के लिए ऊपर का कोई भी एक कंटेंट लेंगे। हाँ, जैसे आपने ए लिखना था, आपने ऊपर वाला चेक करा कस्टमर इन्फो, वो यूनिक होगा। मैं कैसे अच्छा, कह रही हूँ आप ये कि- फायर पाथ से बोल रहे हो, वो इससे होता है, वो इससे होता है। डबल स्लैश क्या था? div नहीं, मैं ये नहीं बोल रही। वो बोल रही है कस्टमर इन्फो अगर कहीं और जगह पे होता है तो अच्छा मैं अच्छा, ऊपर वैसा search फाइंड करके। हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो आप, बट आपको प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएगा कि कस्टमर इन्फो इज यूनिक। सर मुझे भी ऐसा एक कंपनी के लिए इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो एक ही जगह पे एक्सपर्ट ही नहीं मिल रहा है, एलिमेंट ही नहीं। ये सब तरीका यूज करने का, जितने तरीके हम लोगों ने सीखे ना, उसमें से कोई बाकी सब एलिमेंट मतलब सब स्टेप्स हो गए। तो उसके ऊपर का एलिमेंट, उसके नीचे का एलिमेंट, चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग, मैं वो उसको सब स्क्रिप्ट भेजता हूँ। भेजो भेजो। तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो, वो भी कर सकते हैं, तो यूनिक मिल जाएगा। तो मैं फाइंड करते जाऊँगा। इसका क्या रहता है कि अगर बहुत सारी जगह एजेक्स यूज होता है ना आजकल, अच्छा। तो फिर ये उस समय नहीं रहेगा, बाद में आएगा। मतलब वो इवेंट पे वो कोड चेंज होता है HTML, तो अभी तो किया तो नहीं रहेगा बट उस टाइम पे वो रहेगा। मतलब इन शॉर्ट, अभी मैं ये कस्टमर इन्फो जो आपको दिख रहा है ना, दिस माइट चेंज टू समथिंग एल्स आफ्टर लॉगिन। आफ्टर लॉगिन ना, ये हो सकता है, हो ही ना। मतलब आफ्टर लॉगिन ये होगा क्या, मुझे बताओ? ये होगा ही नहीं आफ्टर लॉगिन, दिस ए टैग। मेरी बात सुनो, फिर तो ये तो फिर आपको भी नहीं पता। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ कि जब हम एक्स पाथ लिख रहे हैं तो उसके ऊपर वाला एलिमेंट अगर इंस्पेक्ट मतलब उसका पाथ इंस्पेक्ट करने के लिए आपने बोला कि हम कस्टम इन्फो का पहले वो दे देते हैं रिलेटिव पाथ। तो मैं ये आप बोल रही हूँ, आपको कैसे पता चला वो यूनिक है? हाँ, मैं ये वही बोल रहा क्वेश्चन हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो HTML में आपको जब करते जाओगे ना, तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज ये जो वर्ड है ना, दिस सीम्स टू बी यूनिक। मैं ये नहीं बोला, मुझे शॉर्ट पता चल जाता है कि ये यूनिक है, इसलिए मैं जाके उसको फाइंड करता हूँ। है। हाँ। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं फाइंड ही नहीं करता वहां पे जाके वापस वो हाईलाइट करके। इसलिए मुझे वो लगता है कि वो यूनिक होगा, क्योंकि इसमें आईडी है। तो नॉर्मली आईडीज आर यूनिक, नॉर्मली मतलब आईडीज आर ऑलमोस्ट इन 90% ऑफ द केसेस आर यूनिक। क्लासेस इन 60 to 70% ऑफ द टाइम्स आर यूनिक। तो किसी में अगर आईडी है ना, तो आईडी का बेस्ट तो आईडी बेस्ट है। आईडी रिपीट नहीं होता एक्चुअली, वो रूल्स रहते हैं HTML HTML के। वो रूल में है कि पूरे वेबसाइट में एक ही टाइम आईडी यूज होगा, पूरे HTML में एक ही तो ID। ये पेज में आईडी जो कोई यूज करेगा ना, तो एक ही जगह यूज करेगा, वो बार बार नहीं होगा। वेरएस क्लास कैन बी यूज, तो ये लेफ्ट नैव हिडन एक्सेलेस है ना, ये बहुत जगह यूज करेगा, बट ये आईडी जो है ना, ये एक ही जगह यूज करेगा। सर वीडियो बंद हो गया, कैसे पता? इधर स्क्रीन दिख रही है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने वो एक ले लिया। नेक्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉग इन बटन। मैं इसको जानबूझ के टाइम दे रहा बिकॉज ये सब समझ में आ गया तो सेलेनियम खत्म हो गया एक्चुअली इधर ही। फिर ये थोड़ा इजी लग रहा है जावा सीखने के बाद। ऑब्जेक्ट So, से अच्छे है ना? हाँ, सो यू विल रियलाइज Constructor और method यू से। विल रियलाइज कि हम लोग ने जो सीखा था वो क्यों सीखा था, ऑल दोस थिंग्स। धीरे धीरे, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम, आपके बहुत सारे डाउट्स थे वो सब सॉल्व होंगे।
ठीक है. नाउ दिस सी दिस इज हैज एन आईडी इटसेल्फ, तो इसका मुझे एक्सपाथ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आप इसका पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड इट कि यूनिक होगा. सो दैट वाज लॉगिन का फील्ड. अब इसका आईडी आप मैं बताता आपको नहीं दिखेगा. ATG_store_register login email address. रजिस्टर लॉगिन ईमेल एड्रेस. ये सुनने में ही लगता है कि ये कहीं यूनिक ही रहेगा. रजिस्टर लॉगिन ईमेल एड्रेस. अभी इतना बड़ा आईडी कहीं पे रिपीट नहीं होगा पहली बात. वैसे ही सिमिलरली पासवर्ड का भी रहेगा. ATG_store_register login पासवर्ड. पासवर्ड का पासवर्ड, लॉगिन का लॉगिन. तो इसका मुझे एक्सपाथ लिखने का कोई जरूरत नहीं. इसका आई कैन सिंपली राइट yes id इक्वल टू दिस और id इक्वल टू पासवर्ड का पासवर्ड. नेक्स्ट इज लॉगिन बटन. ATG_store_login बटन. अब मैंने लॉगिन कर दूंगा तो आई विल गेट समथिंग यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम होगा. मैं एक बार लॉगिन करके देखता हूँ. अकाउंट क्रिएट कर लेना लॉगिन के लिए, रजिस्टर करने के लिए. रजिस्टर का फ्लो कर लेना आप लोग, रजिस्टर फ्लो करना. ठीक है, ये वाला आ गया. हाय यूजर नेम. इसका क्लास ATG_store_logged in यूजर नेम. ये भी मुझे यूनिक लॉग्ड इन यूजर नेम पूरा पेज पे यहीं पे आ रहा है मुझे, और पूरा पेज पे कहीं पे नहीं है. सो दिस ऑल्सो सीम्स टू बी यूनिक, बट ये क्लास है. इसमें वो वेरीफाई के लिए लिंक है. हाँ, इसमें से हम लोग डेटा निकालेंगे, गेट टेक्स्ट करेंगे. आपका वो हाँ, वो गेट टेक्स्ट करेंगे. सो हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इससे निकालेंगे कि यहाँ पे गोविंद 0904 लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है. उसी से अपने को पता चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन हो गया या नहीं हो गया, या फिर वही यूजर लॉग इन हुआ जिसका ईमेल एड्रेस मैंने डाला था. सो मेरा मैनुअल टेस्ट केस होता तो कैसा होता, क्लिक ऑन लॉगिन लिंक, यूजर विल बी नेविगेटेड टू लॉगिन पेज, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन. ऑब्जर्व में यूजर शुड बी एबल टू लॉग्ड इन. तो यूजर नेम, इफ यूजर नेम इज gvarma0904 so you should able to see hi govind 0904 on the top. ऐसा आपका एक मैनुअल टेस्ट केस होता है. उसी टेस्ट केस को मैं ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. वही स्टेप्स एग्जैक्टली मैं वैसे ही फॉलो करूंगा. मैंने सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए एलिमेंट्स. अभी हम यहाँ पे कितने कमांड्स देखेंगे. एक लिंक था, लिंक को क्लिक करेंगे, एक बटन को क्लिक करेंगे, एक गेट टेक्स्ट लेंगे 0904 में लूंगा, पुल करूंगा और वेरीफाई करूंगा कि ये मेरा एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच होता है या नहीं होता है ना. और अभी आपने जब वेरीफाई करना है कि मैं लॉग्ड इन हो गया हो नहीं होता, आप क्या देखते हो, हाय जी वर्मा 0904 वेरीफाई टेक्स्ट करोगे तो आपको सेलेनियम में वो टेक्स्ट लेना पड़ेगा. मतलब एक्सपेक्टेड तो आपको पता है कि जी वर्मा 0904 होना चाहिए. एक्चुअल लेकिन क्या है, तो एक्चुअल के लिए आपको टेक्स्ट HTML से पुल करना पड़ेगा, बराबर, वेबसाइट से. तो आपको पुल करोगे वो डेटा, तो उसके लिए गेट टेक्स्ट करेंगे. लिंक क्लिक, बटन क्लिक, टाइप, गेट टेक्स्ट, 4 चीज सीखो. क्लिक इज सिमिलर वेदर इट इज लिंक और बटन, डजंट मैटर एक्चुअली, बट क्लिक इज ए क्लिक. ठीक है, एक बार अपना ब्राउजर खुल गया, देन व्हाट वी विल डू, ऑलवेज स्टार्ट विद ड्राइवर डॉट. आप करोगे, यू विल सी ऑल कमांड्स ऑफ ड्राइवर. सो पहला जो ड्राइवर होता है उसके बाद आपको कहाँ एलिमेंट है वो बताना होता है ड्राइवर को. सेलेनियम को वो बताना होता है कि हाँ एक्सपाथ. तो उसके लिए हम लोग उसको कमांड देते बोलते हैं फाइंड एलिमेंट. You go and find that element by what? By what? By XPath, by ID, by CSS selector, by
वेरियस थिंग्स। तो हम लोग उसको बताते बाय व्हाट। देन उसके बाद एक्सपाथ लिए हो तो राइट एक्सपाथ, आईडी लिए हो तो राइट आईडी, सीएसएस लिए हो जो कुछ भी लिए हो, फिर वो खत्म होता है, मतलब उसको एलिमेंट मिल गया अब। फिर उसके बाद एक्शन आता है। अब एलिमेंट मिल गया, अब उसके ऊपर एक्शन करो। क्लिक होगा तो सिंपल क्लिक, टाइप होगा तो एक्शन, एक्शन के बाद क्या वैल्यू आपको देना है वो। तो सीक्वेंस समझ रहे हो, पहला आपको एलिमेंट फाइंड करना है। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। सो देयर आर टू थिंग्स, एलिमेंट्स बाय, फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एलिमेंट और एलिमेंट्स, एलिमेंट एंड एलिमेंट्स, सिंगल एंड प्लूरल, वही इसमें भी है। एक एक्सपाथ मैं दे रहा हूं एंड मैचिंग दैट एक्सपाथ इफ देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स, सो इट विल फाइंड ऑल दोज एलिमेंट्स। तो एक एरे बनाता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स स्टोर करता है। तो अगर हम सारे एक साथ देंगे जैसे ये यूजर सारे नेम पासवर्ड वो तो नहीं ये अलग अलग है ना। नहीं, एक ही टाइप का, मतलब एक ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने वाला रहेगा। तो दो, कैसे मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग ने एक ब्राउज पेज देखा था जिसमें 48 प्रोडक्ट्स थे, याद है आपको? हम लोग इतने सारे एग्जांपल्स सोचते हैं, हम लोग बोले 100 प्रोडक्ट्स है, डेमो में भी पढ़ा था हम लोगों ने। अभी मुझे सिर्फ ये पता करने का है कि मेरे साइट पे, उस पेज पे कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो हम लोग ने देखा था सबका एक एलआई था, सबका एक एलआई था। तो अभी मुझे फाइंड करना है कि प्रोडक्ट कितने, इसका मतलब है कितने एलआईस हैं, जितने एलआई होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर मैं फाइंड एलिमेंट्स बाय एलआई तक का ही पाथ दूंगा, एलआई 1 2 नहीं है, सिर्फ एलआई तक का पाथ दूंगा ना, तो इट विल फाइंड ऑल एलिमेंट्स मैचिंग दैट क्राइटेरिया। तो उसमें वो एलआई 1 2 3 4 वो सब ले लेगा। उसमें फाइंड एलिमेंट्स करेंगे। हाँ, तो उसमें फाइंड एलिमेंट्स करेंगे। तो हम लोग उसका जब काउंट लेंगे ना, तो एक वो एरे में स्टोर करता है, और उसका जब हम लोग काउंट लेंगे ना, तो वो काउंट में अपने को 48 एलिमेंट्स दिखेंगे, विच विल मीन दैट 48 प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। और जब मैं फाइंड एलिमेंट करूंगा ना सिर्फ, तो वो सिर्फ अपने को पहला वाला प्रोडक्ट ला के देगा, पहला वाला एलआई सेटिस्फाई करता है ना, वो ला के देगा। समझा? फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स वो हम लोग करेंगे बाद में, फाइंड एलिमेंट्स भी। फॉर नाउ फाइंड एलिमेंट्स एंड इट हैज एन आर्गुमेंट। उसको एक पैरामीटर क्या चाहिए था आर्गुमेंट? इट्स बाय। तो यू ऑलवेज नीड टू पास इट बाय। फाइंड एलिमेंट, इसमें आर्गुमेंट क्या चाहिए उसको? बाय। तो अब बाय के साथ उसको एक्सपाथ जो भी चाहिए, तो यू विल ऑलवेज राइट डॉट। तो नेक्स्ट कमांड इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय डॉट, एक कमांड के ऊपर दूसरा कमांड डॉट। अभी अपना पहला वाला क्या था? एक्सपाथ था। तो व्हेन यू राइट एक्सपाथ इट विल एक्सपाथ। आईडी करोगे तो आईडी, क्लास करोगे क्लास नेम लेना। हाँ, वो नीचे वाला क्लास नहीं है, क्लास नेम। लिंक टेक्स्ट, तो लिंक टेक्स्ट क्या करता है? अभी मेरा लिंक का टेक्स्ट क्या था? लॉगिन। तो अगर मैं लिंक टेक्स्ट में सिंगल कोट में लॉगिन दूंगा ना, तो वो पूरे वेब एलिमेंट में जाकर ढूंढेगा एक लिंक। ऑल लिंक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए से स्टार्ट होता है टैग्स। नहीं समझ रहा? मैंने लिंक्स देखा था आपने, ये जैसे ये माय अकाउंट लिंक है, तो ये ए टैग से शुरू होता है। तो वो सारे ए टैग्स जाके देखता है, और उसमें टेक्स्ट में जो टेक्स्ट हमने दिया है वो मैच करेगा, तो इट विल टेक इट। तो बाय लिंक टेक्स्ट। बट अभी मैं एक्सपाथ लेता हूँ, ठीक है? एक्सपाथ। नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर एक्सपाथ एक्सप्रेशन, डबल कोट एक्सपाथ एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखा था। ठीक है? अब मेरा ये जो पूरा चीज है ना, दिस विल रिटर्न मी वेब एलिमेंट। सो आई कैन पुट दिस इन वेब एलिमेंट। इसका नाम मैं लॉगिन नहीं, लिंक था ना, ये लिंक का दिया ना, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। So this is completely returning me a web element, and then all action I can perform on this login link। और
बट नॉर्मली पीपल डोंट डू दिस. सो यहाँ पे दिस इज रिटर्निंग मी वेब एलिमेंट. सो मैं जब डॉट करूंगा तो इट विल गिव मी ऑल एक्शंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन अ वेब एलिमेंट. व्हाट एक्शंस आई कैन परफॉर्म ऑन अ वेब एलिमेंट? क्लिक, क्लियर. तो यहाँ पे टाइप इज नथिंग बट सेंड कीज. सेंड कीज. सो अभी सेलेनियम को ये नहीं पता कि वो वेब एलिमेंट किस टाइप का है, वो आपको जान के उसको इंटेलिजेंट बनाना है. सेलेनियम को सिर्फ इतना ही पता कि ये वेब एलिमेंट है. अब वेब एलिमेंट बटन है, अभी ये लिंक है, तो लिंक पे मैं यहाँ पे सेंड किस करूंगा तो ये तो लिख लेगा, बट फिर मुझे एरर, जब मैं रन करूंगा तो मुझे एरर क्या देगा? देयर इज नथिंग टू राइट और देयर इज नो प्लेस टू राइट. क्योंकि वो लिंक है तो आप लिंक पे लिख नहीं सकते. लिंक कैन बी क्लिक, इट कैन नॉट बी रिटर्न. तो इसलिए यू नीड टू write it correct action here. So the correct action should be here, click. हाँ, send keys is type. Send case is for text box like. हाँ, is always for text box. Type. ठीक है? This is your one command which will click onto your login link. दिस इज माई टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेंड कीज. और उसमें इनपुट इज कैरेक्टर सीक्वेंस, विच कैरेक्टर यू वांट टू टाइप. सो आई वांट टू टाइप ठीक है. सेम कमांड वापस पासवर्ड के लिए. Only thing is this will change locator. तो मैंने इसको कट किया था. लॉगिन पासवर्ड सेम कमांड, इसकी जगह आई विल राइट पासवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज बटन क्लिक. इसमें क्या था? क्लास था. क्लास नेम स्ट्रिंग आईडी था, सॉरी. दिस इज बटन. बटन पे क्लिक एंड लास्ट वन इज क्या था? क्लास नेम डॉट गेट टेक्स्ट. सो ये क्या करेगा? टेक्स्ट निकाल के देगा. अब वो टेक्स्ट मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, दिस विल रिटर्न मी स्ट्रिंग. सो मुझे किसी स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा. स्ट्रिंग मैं एक स्ट्रिंग बना रहा लॉगिन यूजर नेम, उसमें मैं स्टोर करता हूँ. नाउ I will have to compare this logged in username with my actual. तो अभी सेलेनियम का एसर्ट है क्या इसमें? So Selenium by default doesn't have assert. Selenium का assert J unit का है, ये भी J unit का है, J unit का है. HTTP util है, I don't know ये उसका assert है या कुछ और है. I need Selenium का assert. Selenium के पास by default assert नहीं है. मैंने सिर्फ वो वैल्यू स्ट्रिंग में ले लिया. मैं गेट टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैंने साइट से एक टेक्स्ट उठाया. आई नीड टू स्टोर दैट टेक्स्ट समवेयर. कुछ भी ABC डाल दो. बट वो जो लॉगिन बटन का टेक्स्ट लेगा क्या वो? लॉगिन बटन नहीं, लॉग्ड इन हो गया, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया. अच्छा अच्छा. अब लॉग्ड लेबल इन आएगा. लेबल आया, उसका टेक्स्ट लिया मैंने. ओके. यूजर नेम की जगह पे जो टेक्स्ट आया, राइट. नॉर्मली अभी एसर्ट नहीं आ रहा है, एसर्ट टेस्ट एनजी का लेंगे हम लोग.
यहाँ पे एसर्ट आता तो हम लोग एसर्ट करते हैं एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है. बट आई कैन ऑलवेज से इफ लॉग्ड इन यूजर नेम डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस करते हैं हम लोग, बिकॉज अपने को वो केस सेंसिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वी विल इग्नोर केस. अगर ये वाले टेक्स्ट में कौन सा वैल्यू आना चाहिए, एक्सपेक्टेड इज अ क्या था, गोविंद 0905. ठीक है. अगर ये वैल्यू आया देन जस्ट प्रिंट और अभी इसमें मुझे कोई एक वेरिएबल का वैल्यू अपेंड करना है, तो डू यू नो हाउ टू डू इट. सो दिस इज स्ट्रिंग, मैं आई एम प्रिंटिंग जस्ट स्ट्रिंग. नो, सो अब वेरिएबल का वैल्यू के लिए प्लस करो एंड राइट दैट वेरिएबल नेम. सो मेरा वेरिएबल का नेम है दिस लॉग्ड इन. सो इट विल टाइप टेस्ट केस इज पास एंड यूजर इज लॉग्ड इन. यूजर नेम इज जो भी इसमें वैल्यू आएगा. अगर मैच नहीं करता है तो टेस्ट केस इज फेल. यूजर मे और मे नॉट बी लॉग्ड इन, सो मैं टेस्ट केस जस्ट फेल लिखता हूँ. तो यूजर फेल, अगर लॉग्ड इन नहीं हुआ तो भी फेल है, और कोई दूसरा यूजर लॉग्ड इन हो गया तो भी फेल है ना. फेलियर कैन बी 2 थिंग्स. तो अपने को 2 स्टेप पे वेरीफाई करना चाहिए एक्चुअली, बट राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली 1 प्लेस. दीपक समझ रहा है ना. टेस्ट केस इज फेल. तो अगर ये लॉग्ड इन नहीं हुआ ना, तो इट विल गिव मी एरर हियर ओनली, जहां पे मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड दिस एलिमेंट. सो लॉग्ड इन नहीं हुआ तो वो हाई यूजर नेम का जो था वो आएगा ही नहीं. अगर लेकिन कोई और यूजर हुआ तो कोई और यूजर तो फिर आएगा, तो फिर ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा. बट अगर वो लॉग्ड इन ही नहीं हुआ तो क्या होगा पता है क्या, यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन देगा सेइंग दैट दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड. वो भी देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको. ठीक है. सो आई हैव रिटन अ टेस्ट केस. नाउ वी विल रन दिस. अब देखना इसमें क्या होगा, फिर मुझे बताना. अभी मैंने इसमें एक गलती किया है, विच यू नीड टू टेल मी. देखते हो आता है नहीं आता है. URL गया, परफेक्ट. लॉगिन बटन को क्लिक किया, उसने लॉगिन पे लेके गया, लॉगिन पेज पे. अभी वो कुछ टाइप नहीं कर रहा है, और मैं पीछे जाके देखूंगा ना तो मेरा टेस्ट केस फेल हो गया है. कहाँ पे फेल हुआ? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. दिस वन, ये जो ब्लू में लिखा है, नहीं दिख रहा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. आई विल रीड इट. नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अनएबल टू लोकेट एलिमेंट विथ स्टोर रजिस्टर लॉगिन ईमेल एड्रेस. ये एलिमेंट उसको नहीं मिला. दिस, ये क्या था, ये आईडी किसके साथ था, लॉगिन टेक्स्ट बॉक्स के, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स से अगेंस्ट था, उसको मिला नहीं. क्यों? याद करो. हाँ नहीं, मैं लॉग्ड इन नहीं था. फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स है, सॉरी, इस पे लॉग्ड इन नहीं था मैं. तो ये फायरफॉक्स का दूसरा इंस्टेंस है, दिस इंस्टेंस है. ये इंस्टेंस में कहाँ लॉगिन है, मैं दूसरे वाले इंस्टेंस से लॉगिन. एक्लिप्स से भी कुछ लेना देना नहीं है. मैंने ये रीजन बताया आपको, डिले हो गया. याद करो. ओपन डिले हो गया. हुआ क्या,
मैंने कमांड्स क्लिक एंड वेट। राइट, मैंने कमांड्स क्लिक लिखा, क्लिक के बाद मैंने सीधा उसको बोला सेंड कीज, तो उसने क्लिक किया, क्लिक के बाद इट इमीडिएटली स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड एंड जब लेकिन बट क्लिक के बाद पेज लोड होना शुरू हुआ, लॉगिन पेज आने को 2-4 सेकंड लगे, तब ये एलिमेंट जाके मुझे दिखेगा, राइट। मुझे तुरंत वो एलिमेंट नहीं आ गया था, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आइडियली इधर पे वेट डालना चाहिए। वेट इन जावा इज नथिंग बट थ्रेड डॉट स्लिप, जिसमें आप थ्रेड स्लिप कर देते हो। थ्रेड मतलब इसको एक प्रोसेस आईडी असाइन होता है, थ्रेड असाइन होता है, वो थ्रेड को ही आप रोक देते हो, मतलब एग्जीक्यूशन ही रोक देते हो 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए। बट क्लिक एंड वेट नहीं है। नहीं, इसमें क्लिक एंड वेट नहीं है। तो थ्रेड डॉट स्लीप हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। उसको आप स्लीप दे दिए, कोई एलिमेंट 10 सेकंड में लोड होता है, कोई 5 सेकंड में लोड होता है, कोई 20 सेकंड में लेता है। कभी एक ही एलिमेंट 20 सेकंड में होता है, कभी वही एलिमेंट 1 सेकंड में हो जाएगा। हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑल दिस? कैसे करो? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कमांड की वो जब लोड हो तो उसके बाद वो हम आगे याद करो मैंने कौन सा कमांड बताया था, क्या बताया था? इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, राइट। तो थ्रेड स्लीप ब्रैकेट में उसका टाइम, हाँ, वो थ्रेड स्लिप नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। थ्रेड डॉट स्लिप का मैंने बोला ना अलग अलग प्रॉब्लम्स है। थ्रेड डॉट स्लिप में कभी जल्दी होगा, कभी लेट होगा। मैंने थ्रेड डॉट स्लिप में 5 सेकंड डाला, नहीं आ रहा है? मैंने थ्रेड डॉट स्लिप में 5 सेकंड डाला, बोला स्लिप बोल रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लिप में नहीं डालना। तो मैंने थ्रेड डॉट स्लिप में 5 सेकंड डाला, तो हो सकता है वो 6 सेकंड में लोड हो, तो फेल हो जाएगा। मैंने 6 सेकंड डाला, हो सकता है 3 सेकंड में लोड हो जाए, तो मैं 3 सेकंड वेस्ट कर रहा हूँ अपने। सो आई नीड टू राइट इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट का मुझे सिंटेक्स याद नहीं है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट सो व्हाट आई विल डू, ये थ्रेड डॉट स्लिप में डालता हूं ना जब, तो इट बिकम्स एक्टिव फॉर द एंटायर टेस्ट केस। सो किसी स्टेप के लिए नहीं होता है, फॉर एंटायर एप्लीकेशन के लिए हो जाता है। एक स्टेप क्लिक के बाद डालेंगे तो भी नहीं, तो भी वो एंटायर एप्लीकेशन के लिए लेता है, बिकॉज इट इज एट ड्राइवर लेवल। तो ड्राइवर जो सेशन का है, उस टेस्ट केस का है, तो पूरे सेशन पे एक्टिव हो जाता है वो थ्रेड डॉट स्लिप। तो it will always wait for particular element to load or a particular web page to load। तो मैं बताता हूँ, अभी हम लोग ने ड्राइवर इनिशियलाइज किया है, तो since it is associated with driver it should always be after driver। ये मैं ड्राइवर के पहले लिखूंगा तो मुझे नल पॉइंटर एक्सप्लेन देगा कि ड्राइवर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हाउ यू डू। सो ड्राइवर इनिशियलाइज करने के बाद ऑलवेज माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी इम्प्लिसिट वेट। सो उसका सिंटेक्स इज कॉमन, ड्राइवर डॉट मैनेज। क्या मैनेज कर रहे हैं हम लोग? वी आर मैनेजिंग टाइम आउट्स, एंड विच टाइप ऑफ टाइम आउट इट इज? इम्प्लिसिट वेट। मैं उसको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, 30 लिखा हूँ मैंने, एंड टाइम इन सेकेंड्स। तो आई कैन गिव टाइम इन मिनट्स, टाइम इन आवर्स, टाइम इन मिली सेकेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई एम पुटिंग इट टाइम इन सेकेंड्स। ऊपर से आ रहा है, ये लेक्चर मिस करने का नतीजा है इम्प्लिसिट वेट वाला। इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट सबको याद है या नहीं याद है, तो मैं वापस नहीं बताता हूँ। तो इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, जैसे अभी हम लोगों ने एक केस देखा जिसमें ब्राउजर लोड हो रहा था एंड फिर भी उसने नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड किया ट्राई करने का। तो इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, अक्रॉस द साइट है ना, वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के लिए वेट करता है किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। अगर नहीं मिला तो मिल गया, जितना टाइम में मिल गया उतना टाइम में आगे चला जाएगा, नहीं मिला तो मैक्सिमम 30 सेकंड तक वेट करेगा। तो अभी हमने नहीं लिखा था ना जिस केस में, उसमें क्या किया उसने, जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया लॉगिन पे, ही ट्राई टू गेट द नेक्स्ट लिंक, और उसको नहीं मिला तो इट डिडंट वेटेड, इट इमीडिएटली शोड अस एरर सेइंग दैट एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अभी इम्प्लिसिट वेट लिखने के बाद क्या होगा, अगर उसको नहीं मिला तो इट विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, एंड देन शो मी द सेम एरर। बट अगर 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर मिल गया तो इट विल, जैसे ही उसको मिला वो एलिमेंट, इट विल स्टार्ट टाइपिंग इट।
एक्सप्लिसिट वेट क्या करता है, ऑन टॉप ऑफ इम्प्लिसिट वेट देर आर फ्यू कंडीशंस, जैसे तो एक्सप्लिसिट वेट मतलब समझता है, एक्सप्लिसिटली आई एम टेलिंग यू समथिंग, एक्सप्लिसिटली आई एम डूइंग दिस, नोइंगली कुछ कर रहा हूँ जबरदस्ती का, तो मैं जबरदस्ती का वेट करता हूँ कुछ कंडीशंस पे, लेकिन वो कंडीशंस क्या होती है, एलिमेंट इज एलिमेंट विजिबल, तो एक्सप्लिसिट वेट फॉर द एलिमेंट टू बी विजिबल, फॉर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, फॉर एलिमेंट टू बी एक्टिव, फॉर एलिमेंट टू बी नॉट एक्टिव, नॉट क्लिकेबल, डिसेबल्ड, एनेबल्ड, ऐसे सब कंडीशंस होती है। फिर एक्सप्लिसिट वेट हम ड्राइवर लेवल पे तो नहीं कर सकते ना उसको, तो अगर तो बटन एक्सप्लिसिट वेट लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिट लेवल अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एन एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, हाँ। तो जब मैं एलिमेंट टू बी क्लिकेबल बोलता हूँ तो Element एलिमेंट specific स्पेसिफिक होता है वो, हाँ। तो उस एलिमेंट के लिए क्लिकेबल, तो फिर- तो ऑन टॉप ऑफ इम्प्लिसिट वेट, अभी इम्प्लिसिट वेट मैंने 30 सेकंड दिया, इट विल वेट फॉर 30 सेकंड, कोई एक एलिमेंट है जिसको और थोड़ा टाइम लगता है एनेबल होने को, 35 सेकंड, तो आई कैन नॉट गिव दिस ग्लोबली 35 सेकंड, तो सबके लिए वेट करना शुरू कर देगा 35 सेकंड, तो मैं 30 सेकंड का इम्प्लिसिट वेट और 5 सेकंड का एक्सप्लिसिट वेट दूंगा। तो एक्सप्लिसिट वेट आप किस कंडीशन पे दोगे फिर? जब मुझे देखना है, जब वो एलिमेंट एनेबल होने में, लोड होने में 35 सेकंड ले रहा है, और मेरा इम्प्लिसिट वेट कितना है, सिर्फ 30 सेकंड्स का है। लेकिन अभी आप कह रहे हो जैसे इम्प्लिसिट वेट ड्राइवर लेवल पे लगता है, पूरे टेस्ट केस पूरे test case अलग पे। अलग पे नहीं लगेगा। हाँ। पूरे टेस्ट केस में हमारे पास बटन भी है हाँ। और टेक्स्ट बॉक्स भी है, हम्म, तो बटन क्लिकेबल है, टेक्स्ट कुछ मतलब कोई ऐसा चीज आती है जैसे आपने कहा तो visible हो तो या 30 clickable सेकंड्स हो। में हम लोग एज्यूम करते हैं कि सब का सब एनेबल्ड हो जाए, पेज पूरा लोड हो जाता है 30 सेकंड्स में, इम्प्लिसिट में। इम्प्लिसिट में। हाँ, अब एक्सप्लिसिट जो आप एडिशनल 5 लगा रहे हो उस पे कंडीशन क्या दोगे? मींस डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट बिहेव कैसा कर रहा है, क्या मैं उस एलिमेंट को एनेबल होने के लिए वेट कर रहा हूँ। लेवल पे लगेगी ना, मतलब हाँ, वो element level पे। यहाँ पे तो नहीं लगेगी ऊपर। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी मेरे लॉगिन टाइप करने पे ही अगर ये पासवर्ड एनेबल्ड होता, एक मेरा फंक्शनलिटी ऐसा है कि पहला पासवर्ड का फील्ड डिसेबल होता है, जैसे ही मैंने लॉगिन टाइप किया और मैंने सही लॉगिन टाइप किया रहेगा तो ही एनेबल होगा, और उसको अनेबल होने में 1-2 सेकंड लगता है। हाँ। मतलब वो वेब पेज है, वेब पेज को सर्विस को कॉल भेजने में, सर्विस से कुछ कॉल लेके आने में कुछ टाइम लगता है, तो 2 सेकंड लगता है मुझे। ओके। अगर मेरा टेस्ट केस ऐसे होता, मैं लॉगिन करता, जी वर्मा 0904 लिखता और इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट स्टेप था पासवर्ड लिखना, तो पासवर्ड लिखने जाता बट उसको 2 सेकंड लगता है लोड होने में, तो क्या करता, मुझे एरर थ्रो करता, दिस एलिमेंट इज नॉट इंटरेक्टेबल और दिस एलिमेंट इज नॉट एनेबल्ड, समझी। हाँ, फिर मुझे एरर थ्रो करता, उस केस में मैं क्या करता ना, इस पासवर्ड के ऊपर मैं एक एक्सप्लिसिट वेट लगाता, सेइंग दैट इज वेट फॉर द एलिमेंट टू बी एनेबल्ड, और फिर मैं इसको 5 सेकंड देता, वो 2 सेकंड में एनेबल हो जाता, तो वो 2 सेकंड में आगे टाइप करना शुरू करता वो। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो आप एक्सप्लिसिट वेट दोगे वो आप टेस्ट केस में मेंशन किधर करोगे? वो step level पे। फाउंड करने के बाद तो- वो एलिमेंट फाइंड करने तो के जैसे बाद- अभी मैं आपको ये एग्जांपल में बताता, अभी पासवर्ड है, मैंने सेंड किस किया, मतलब मुझे इसके बाद वेट करना है, बराबर। हाँ, तो आप यहाँ पे तो- दोगे ना एक्सप्लिसिट वेट। वेट न्यू, एक मिनट ना, मुझे सिंटैक्स देखने दे इसका। वेब ड्राइवर वेट, सो वेब ड्राइवर वेट, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मैं इसको नॉर्मली मैं एक्सप्लिसिट नाम देता हूँ। न्यू वेब ड्राइवर वेट,
इसको मैं ड्राइवर पास करता हूँ, 2 पैरामीटर लगते हैं, ड्राइवर और कितना टाइम आउट है, तो मैं इसको 5 सेकंड देता हूँ। अब इस एक्सप्लिसिट वेट को, तो एक इंस्टेंस एक्सप्लिसिट का वेट का है जिसको मैंने 5 सेकंड दिया है। अब इसको यूज करके डॉट वेट फॉर द एलिमेंट टू बी विजिबल, ये दिख रहा है क्या? वेट 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 all these are present. Presence of element, text to be present, element to be selected, element to be clickable. तो मैं यहाँ पे उसका सिंटेक्स एक बार मिले ना तो फिर मैं आपको बताऊँ, कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ, until, sorry. So explicit wait डॉट until, कब तक वेट करना? until wait until expected conditions are met. नहीं, वेट until, एक सेकंड मैं मेरे प्रोजेक्ट में ढूंढता हूँ। वेट until expected conditions visibility of, okay. Expected conditions dot conditions अंटिल में एल दिया। expected conditions dot visibility of element, और इसमें एलिमेंट का लोकेटर डालता, तो एलिमेंट क्या होता मेरा? ये पूरा होता। सो अब ये क्या करता पता है क्या? ये क्लिक करने के बाद है ना सेंड कीज, सॉरी, ये टाइप करने के बाद इट कुड हैव एक्सप्लिसिटली, तो इसको 35 सेकंड अगर लगता विजिबल होने को या दिखने के लिए, तो वो 30 सेकंड है ना इसकी वजह से वेट करता, और 5 सेकंड जो है ना वो इसकी वजह से वेट करता वो। तो आई एम गिविंग इट एन एक्सप्लिसिट कंडीशन, विजिबिलिटी ऑफ। ऐसे ही आई हैव मेनी कंडीशन, एलिमेंट सिलेक्शन स्टेट टू बी, clickable, not clickable, available, not available, alert present, not alert present. So all these things conditions are, एक सेकंड ना, हेलो, हाँ बोलिए ना। नहीं, लेक्चर में हो एक्चुअली। आप बोलिए ना, लेकिन क्या हुआ था? ओके, बात करते हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद फिर बात करते हैं उसके बारे में। दिस शुड बी डन अराउंड 5:30।
मैं कॉल करता हूँ। आपको जो सुबह नंबर दिया था वो अलग था एंड दिस इज डिफरेंट। नहीं, लेटर ऑन यू शेयर्ड। ओके, ओके, सो मैं किस पे, उस पे कॉल करूँगा तो चलेगा ना? ठीक, ओके, फाइन फाइन। कहाँ थे हम लोग? सो एक्सपेक्टेड कंडीशन में बहुत सारी कंडीशंस हैं। So these conditions will only be, since I wrote this condition for this particular element only, so it will only be applicable for this element or no other element. ठीक है? 35 सेकेंड तक वो रुकेगा ना? So अभी मेरा एक एलिमेंट है जिसको एनेबल होने के लिए 35 सेकेंड्स लगता है, या विजिबल होने के लिए 35 सेकेंड्स लगता है। मेरा पेज लोड हो गया, सब कुछ हो गया, बट मेरे को अभी 35 सेकेंड और लगता है। तो आइडियली ये इम्प्लिसिट वेट है ना, दिस शुड टेक केयर टिल ओनली 30 सेकेंड्स। बट अभी मेरा ये वाला कौन सा था, वो पासवर्ड वाला फील्ड है ना, वो 35 सेकेंड्स ले रहा है आने के लिए। तो क्या करेगा पता है, यूजर नेम टाइप कर देगा, पासवर्ड टाइप करने जाएगा ना, तो इट विल सी कि एलिमेंट विजिबल नहीं है। सो इट विल गो टू इम्प्लिसिट वेट, और इम्प्लिसिट वेट में 30 सेकंड से 30 सेकंड तक वेट करेगा उसको आने के लिए। 30 सेकंड खत्म हो गया, देन वो क्या करेगा ना, वो फिर इस पे जाएगा इम्प्लिसिट वेट पे। एंड इम्प्लिसिट वेट में हम लोग ने एक्स्ट्रा उसको 5 सेकंड्स बोला है, और 5 सेकंड्स लिए कंडीशन क्या दिया था, एलिमेंट टू बी विजिबल। सो ये अलग अलग कंडीशंस के लिए रुकेगा। एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड स्टेट या क्लिकेबल ले लेते। सो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तब तक वो रुका रहेगा, बट मैक्सिमम कितना टाइम, 35 सेकेंड्स। सो अभी आपका टोटल वेट टाइम कितना हो गया, 35 सेकेंड। इसलिए हम लोग ने इम्प्लिसिट वेट डाला है ना। उतना तो वो रुकेगा ही रुकेगा। अभी मेरा अगर सपोज 30 एंड 5 डाला है हम लोगों ने, इम्प्लिसिट 30 और एक्सप्लिसिट 5, तो अगर सपोज 25 सेकंड्स में ही मेरा हो गया सब, तो आगे जाएगा 25 तो सेकंड। 5 सेकंड रुकेगा कि नहीं रुकेगा। बट वो एक्सप्लिसिट है ना वेट। मैक्सिमम टाइम उतना रुकेगा। Maximum time उतना रुकेगा। एग्जीक्यूशन तो वो चला जाएगा 1 सेकंड हाँ। में चला जाएगा। मुझे लगा वो 5 सेकंड रुकेगा। नहीं, एलिमेंट टू भी विजिबल है ना। अगर एलिमेंट विजिबल है पहले से, ये कमांड एग्जीक्यूट होने के पहले ही एलिमेंट टू भी क्लिकेबल है, तो ये कमांड का कोई जरूरत ही नहीं। दिस विल नॉट इवन वेट फॉर अ सेकंड, बिकॉज वी आर टेलिंग इट कि एलिमेंट क्लिकेबल है क्या नहीं, एंड इट विल रिटर्न अस ट्रू कि एलिमेंट इज क्लिकेबल। इम्प्लिसिट में 30 सेकंड्स तो रुकेगा ही रुकेगा, है ना? नहीं, उसमें भी नहीं। उसमें पर तो अभी ये कंडीशन अगर आप बोलोगे 30 सेकंड रुकेगा, मतलब मेरे हर कमांड के बीच में 30 सेकंड रुकना चाहिए। ऐसे तो मेरा 30 सेकंड मतलब मेरे 10 कमांड है तो 3 मिनट 300 मिनट ऐसे रुकेगा, फिर तो 5 मिनट। अब भी देखना, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो एज सुन एज द पेज गेट्स लोडेड ना, देन ओनली इट विल स्टार्ट टाइपिंग। क्या डिफरेंस हुआ? तो इम्प्लिसिट मतलब फॉर द होल एप्लीकेशन, मतलब Yes, होल सेशन। whole application, whole session, and not for any condition. यहाँ पे explicit वेट में we are defining a condition. Condition only. Why don't तो you फिर see this? implicit में कैसे पता चलेगा 30 सेकंड वेट, मतलब अगर अगली चीज आ गई है, अगला एलिमेंट लोड हो गया है, हो गया तो उसको वेट करने का जरूरत ही नहीं है। अरे नॉर्मल अभी तक तेरा ये जो एक्सेप्शन आया है ना, whenever your Selenium encounters this exception, it will not directly throw, वो एरर नहीं देगा, इंस्टेड इट विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स कंटिन्यूसली। उसका एक पोलिंग टाइम होता है जो हर प्रॉब्ली पोलिंग 30 टाइम। सेकंड ब्रेक कैसे होएगा? आप कह रहे हो कि जब अगला एलिमेंट आ जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा 30 सेकंड्स का टाइम ऑफ। हाँ, तो फिर एक्सप्लिसिट में भी तो यही है। एक्सप्लिसिट फॉर ओनली पर्टिकुलर कंडीशन। एक पेज लोड हो गया तेरा, बट कुछ वजह से वो डिसेबल है, Disabled है, अनेबल नहीं है, क्लिक बटन है, वो लॉगिन बटन है, वो उसको डिसेबल कर दिया। कुछ तो भी प्रोग्राम में कुछ तो भी लिखा रहेगा, क्यों डिसेबल है क्या वो उसको नहीं पता, लेकिन वो पेज लोड होने के बाद, सब लोड होने के बाद फिर वो अनेबल होगा। तो पेज लोड होने के लिए हमने 30 मिनट्स दिया है उसको, लेकिन अभी वो
बटन अब तक अनेबल नहीं हुआ है, तो मे बी उसको टाइम भी लग सकता है, तो पर्टिकुलर बटन के लिए हमने एक्सप्लिसिट दिया एंड कंडीशन दिया उसके साथ दैट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। तो डिसेबल है ना। इम्प्लिसिट वेट में हम लोगों ने कंडीशन नहीं दिया, इम्प्लिसिट वेट में वो खाली एलिमेंट दिखने के लिए ही रुकता है, वो एलिमेंट विजिबल है या नहीं, एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। और एक्सप्लिसिट वेट में कंडीशंस दिया है, वो सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट के लिए नहीं, क्लिकेबल एलिमेंट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। जब एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपका इम्प्लिसिट वेट काम नहीं करेगा, तब आपका एक्सप्लिसिट वेट का कंडीशन काम करेगा। जब आपका एलिमेंट विजिबल हो गया बट इट इज इन डिसेबल्ड स्टेट, सो तो मतलब बस प्रेजेंट के लिए हम इम्प्लिसिट लेते हैं, बाकी प्रेजेंट के लिए क्लिकेबल, नॉट क्लिकेबल, प्रेजेंट, अनेबल, अभी हम लोग ने देखा ना इतना वो तो सारा। एक्सप्लिसिट हो गया ना। हाँ सॉरी एक्सप्लिसिट, हाँ सॉरी इम्प्लिसिट प्रेजेंट के लिए होता है ना सिर्फ। हाँ प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। हाँ वैसा भी बोल सकते हैं आप, सिर्फ प्रेजेंट के लिए। ओके। कहाँ गया, बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ था ना इधर, ये ये सारी कंडीशंस है। अलर्ट प्रेजेंट, एलिमेंट सिलेक्टेबल स्टेट टू बी, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल सिलेक्टेबल, ये सब कंडीशंस है उसकी। समझ रहा है मिलन आपको? मिलन ने अच्छे से पढ़ा है, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब अभी आपको रन करेंगे ना तो समझ जाएगा। तो आई प्रॉब्लम एक्सप्लिसिट वेट के साथ क्या है पता है क्या, वैसे एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कुछ कंडीशन पे एलिमेंट अनेबल हो, या फिर मैं लॉगिन डालूं और पासवर्ड डालूं तो ही लॉगिन बटन अनेबल हो, ऐसा कुछ एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा। आप बनाओगे कोई एप्लीकेशन वेब बता। ड्राइवर वेट वैसे ही लिखना पड़ेगा ना एक्सप्लिसिट के लिए। हाँ एक्सप्लिसिट के लिए ऐसे ही, वेब ड्राइवर वेट एक्सप्लिसिट वेट इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। ये मुश्किल है लिखना। और वो बाय डिफॉल्ट Implicit ये सब ना हम लोग वही बोला कीवर्ड्स बनाएंगे ये सब के पेमेंट लिए। बोला था ना, जब तक वो आप क्रेडिट कार्ड नहीं डालते, नंबर हाँ। नहीं डालते तो तब तक अनेबल डिसेबल रहता है, वो करते प्राउड हैं, होती है। वो तुम करके लेके आना हैं? असाइनमेंट। ठीक है, ये हम लोग इसके लिए कीवर्ड्स बनाएंगे। जब कीवर्ड्स बनाएंगे तो ये सब बार बार, इसलिए मुझे सिंटेक्स याद नहीं रहते, क्यों? क्योंकि मैंने उसका कीवर्ड बना के मैंने एक जगह रख दिया। आई डोंट कीप ऑन टाइपिंग एवरीथिंग, तो वो कीवर्ड ले लो। तो हमेशा मैं मेरा कीवर्ड्स लेता हूँ, ना कि ये सब लिखते बैठता हूँ। तो फिर आपका कोड आपको ही समझ आया करेगा, ऐसे भी होता होगा ना। नहीं ना, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, मैं बताता हूँ नहीं कि मतलब वैसे हाँ ऐसे तो मेरे को समझ अगर आएगा। आप किसी को नहीं जानते। बट अभी मैं किसी को बताना चाहूँ, अभी जैसे सेलेनियम ने लिखा तो सिर्फ सेलेनियम को थोड़ी समझ में आ रहा है। सेलेनियम ने मुझे बताया कि सेंड कीज मतलब क्या होता है कि टाइप करो, तो सेलेनियम ने मुझे बताया तो इसलिए मुझे पता है। तो जब मैं किसी को एप्लीकेशन बताऊंगा या प्रोग्राम समझाऊंगा तो मैं उसको कीवर्ड्स बताऊंगा कि दिस आर द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड दिस पर्टिकुलर कीवर्ड्स डज दिस एक्शन। तो वो कीवर्ड्स कहाँ डिफाइन करने होते हैं सारे? सब आप एक ही दिन में पूछ लो। हाँ सर, और ये सेकंड रहता है बाय डिफॉल्ट। नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सेकंड्स दिया। सो इसमें नहीं, उधर में नीचे एक्सप्लिसिट में। उसमें भी आप कुछ भी दे सकते हो। हाँ जी, ये हाँ ये सेकंड्स रहता है, ये सेकंड्स रहता है। इम्पेशेंस हो जाती है लड़कियां, है ना? वो देखो बेचारे दोनों कैसे शांत बैठे। तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सारे। इंटेलिजेंट तो सब रहते हैं, किसी में क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है, क्या है ये, कैसा हो रहा होगा, कैसा होगा। सो अब देखना नेक्स्ट एक्शन जो परफॉर्म होगा ना, वो हमेशा मेरा एलिमेंट लोड होने के बाद या फिर ये होने के बाद। अभी पिछला केस में क्या हुआ था ना, ये देखो, जब तक ये आया नहीं ना तब तक उसने टाइप करना नहीं शुरू किया। पिछले केस में क्या हुआ था ना, ये आया नहीं था एंड इट स्टार्टेड टाइपिंग, तो उसको एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिला। सो इट हैज वेरीफाइड। अभी अपने को पता नहीं चल रहा बिकॉज ब्राउजर बंद नहीं हुआ। सो सी टेस्ट केस इज पास्ड एंड यूजर इज लॉग्ड इन, यूजर नेम इज दिस। तो ये जो टेक्स्ट लेके आया है दैट इज इट हैज टेकन फ्रॉम साइट। ठीक है, दूसरा चीज, आफ्टर एवरी टेस्ट केस यू आर सपोज टू क्लोज द ब्राउजर, अदरवाइज तुम्हारे 100 टेस्ट केस के बाद ना 100 ब्राउजर से नीचे ओपन रहेंगे। यू आर क्रिएटिंग, ब्राउजर में नहीं वो करता खोलता सेम, अगर वो ट्राई तो फिर फायदा क्या वहाँ पे टेस्ट केस लिखने का? अब सेलेनियम
अभी आपका एक लॉगिन का टेस्ट केस है, हाँ, आपने लॉगिन का टेस्ट केस लिख दिया, और हम लोग मैनुअली जब करते हैं तो मुझे पता रहता है कि लॉगिन मतलब माय अकाउंट का टेस्ट केस है, सॉरी माय अकाउंट में मैंने माय प्रोफाइल वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट टेस्ट केस में क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मुझे कहाँ से सिर्फ उसी पेज में वापस देखने का है कहीं पे, तो माय अकाउंट में सेलेनियम को कैसे पता चलता है? सेलेनियम को फिर तुम बताओगे कि पहला माय अकाउंट में लॉगिन करो, नहीं, अगर हम इसी के बाद लिखे अब जैसे आपने यहाँ तक तो एक ही टेस्ट केस हुआ ना, सेशन मेंटेन करते हैं ना। एक ही टेस्ट केस हुआ ना, एक ही साथ सब लिखते जाओगे तो एक ही टेस्ट केस हुआ। मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए मल्टीपल जगह लिखना पड़ेगा ना, अलग अलग ना। सो यू आर सपोज टू क्लोज द ब्राउजर एंड क्विट द ड्राइवर। सो आफ्टर दिस जस्ट राइट ड्राइवर डॉट क्विट, दिस विल क्विट द ड्राइवर, सेशन भी बंद करेगा, ड्राइवर का भी सेशन बंद करेगा, थ्रेड बंद करेगा एंड ब्राउजर को क्लोज करेगा। दिस विल क्लोज और सेशंस जो भी नया टैब खुला था उस ड्राइवर के रिलेटेड, नया विंडो खुला था, ऑल इट विल क्लोज एट द एंड ऑफ योर टेस्ट केसेस। ड्राइवर डॉट क्लोज किया ना तो सिर्फ ब्राउजर क्लोज करता है, ड्राइवर का इंस्टेंस अभी भी रहता है। तो फिर वो यूज नहीं कर सकते अगले टेस्ट केस में? नहीं, तो फिर अगले टेस्ट केस में तुम्हारा सेशन कुकीज वो सब मेंटेन रहेगा, ड्राइवर के अंदर जो भी तुमने किया ना वो सब मेंटेन रहेगा। सर हमेशा अभी हम लोग जब ये लिखते रहते हैं कोड तो हमारे को बार बार डिबग मतलब चेक करने का रहता है, डिबग करने का रहता है कि यहाँ तक आ गए, और फिर समझो हमारे 20 स्टेप्स है और हमारे 20वें स्टेप के ऊपर हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमारे को जब भी रन करने का रहता है बार बार 20 स्टेप तक हाँ। रन करके देखना पड़ता है। हाँ। उसके लिए तो सॉल्यूशन है, बीच में से हम ब्रेक पॉइंट वैसा ऐसा कुछ है। आइडियली टेस्ट केस वैसे ही होता है। टेस्ट केस में हम लोग प्री कंडीशन डालते हैं ना, तो हम लोग प्री कंडीशन में लिख देते हैं यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, लॉग्ड इन करने का जरूरत ही नहीं। बट इस केस में नया सेशन बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे पुराने सेशन का कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आपको ये सारा दोबारा वही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं फ्रेमवर्क जब बनाऊंगा तो मैं ये मेथड्स बनाऊंगा इसके रियूजेबल, और मेथड्स को कॉल करूंगा। ओके, जो क्लासेस सब्जेक्ट्स मेथड्स बनाया था ना हम लोगों ने, स्टॉप स्टार्ट और मेथड्स को कॉल करा था, मैं मेथड्स को कॉल तो करूंगा। आप इसको एक मेथड बना दो। हाँ, उसको तो call करो। अभी उससे क्या होगा, अभी यही मैंने लाइन है, अभी मैंने बोला था ना यही लाइन मैंने 5 जगह रिपीट की होती, 5 लॉगिन होता 5 जगह रिपीट की होती, कल के दिन जाके इसका आईडी चेंज हो गया होता, हाँ, तो डेवलपर आपको का पांच मूड जगह चेंज हो गया, change करना तो मुझे 5 जगह जाके आईडी चेंज करना पड़ता। लेकिन जब मैं इसको रीयूज करूंगा तो मैं यहीं आके चेंज करूंगा सिर्फ। ये क्लियर है? अब हो गया, सिलेंडर खत्म एक्चुअली। सर 15 मिनट एक और चीज है वो सुन के लो, ठीक है? अब जब मैं माय अकाउंट का टेस्ट केस लिखूंगा या कोई और टेस्ट केस लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तब भी मुझे ये चीज जो है फिर से लिखनी पड़ेगी अगर मैं रीयूजेबल नहीं कर रहा हूँ तो। अगर मैं रीयूजेबल भी कर रहा हूँ तो अभी मैंने 5 स्टेप इधर लिख दिए, बट मुझे एक सिर्फ फॉरवर्ड पासवर्ड का टेस्ट केस लिखना है एक अलग से। तो फॉरवर्ड पासवर्ड में आने के लिए भी आई हैव टू क्लिक ऑन दिस, आई हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन लिंक, तो लॉगिन पेज आएगा और उसमें फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक रहेगा। सो लॉग आउट हुआ नहीं गया, सेशन एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया और मुझे इधर फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक आ रहा है। सिमिलरली मुझे अभी ये वाला वेरीफाई करना है टेस्ट केस, या इसका वेरीफाई करना है टेस्ट केस, तो मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा और हर बार मुझे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, विच मीन्स मुझे ये बार बार लिखना पड़ेगा। इसको आप एक कुछ तो मैं इसका क्या करता हूँ, मतलब उसका कहाँ गया, ये वाला टैग हर बार लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा ना, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट सेपरेटिंग आउट माई लोकेटर्स। सो मैं लोकेटर्स, जैसा मैं मेथड्स बोला रीयूजेबल मेथड एक ही बार लिखूंगा और बार बार कॉल करूंगा, वैसे ही मैं लोकेटर्स को भी सेपरेट कर दूंगा और उसी को बार बार कॉल करूंगा। सो इसकी वेरिएबल भी दे दो फिर। हाँ, तो वही बोला बहुत सारे तरीके।
तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल दे सकता हूँ मैं इसको. अब ये स्ट्रिंग है, एनीथिंग अंडर डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉगिन लिंक. अभी मैंने इसी क्लास में लिखा आई कैन यूज दिस एनी अदर क्लास, एंड उसके बाद मैं यही लॉगिन लिंक को हर जगह कॉल करते रहूंगा, राइट. और अभी मैं इसकी जगह आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस. तो अब मुझे चेंज करना रहेगा तो मैं सिर्फ इसको चेंज करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा. ये एक चीज समझा. बट हम लोग ऐसा भी नहीं करेंगे, वी विल हैव अ डिफरेंट वे टू डू इट. और मुझे क्या बताना, सो दिस इज, अभी मैं आपको बाकी सब ड्राइवर्स बता देता हूँ एक बार. सो सबका अलग अलग है. बताना बहुत कुछ था लेकिन अभी आप जा रहे हो इसलिए multiple browser. Okay, this was Gecko driver. This is for Chrome. तो मैं इतना ही बात कॉपी करता हूँ, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और मैं यहाँ पे पाथ जो दूंगा वो क्रोम ड्राइवर का दूंगा. आई के लिए आई डॉट ड्राइवर, और इधर जो पाथ दूंगा मैं वो आई ड्राइवर का होगा. तो ये गीको ड्राइवर है, फोल्डर मेरा सबका सेम है. आई ड्राइवर 64 बिट है तो 64 बिट देना, 32 बिट है तो 32 बिट देना. नाम दोनों का ऑलमोस्ट, नाम दोनों का एक ही रहता है, बट एंड में 64 32 अपेंड कर देना. ठीक है. सो नाउ अब मैं इसको अगर क्रोम ड्राइवर करूंगा तो नाउ दिस विल ओपन इन क्रोम. नहीं, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में वैल्यू अलग अलग है ना, एक का क्रोम है, एक का ये, एक है. मैंने प्रॉपर्टी तीनों सेट कर दी, और क्रोम यूज करूंगा तो क्रोम वाला रीड करेगा, क्रोम अपना वाला प्रॉपर्टी रीड करेगा. फायरफॉक्स करूंगा तो फायरफॉक्स अपना वाला रीड करेगा. तीनों नहीं कर सकते ना, एट ए टाइम तीनों कर सकते हैं. ग्रिड पे कर लेंगे. तीनों में ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, 3 अलग अलग इंस्टेंसेस रहेंगे ड्राइवर के, 3 थ्रेड्स बनेंगे, एंड दे विल रन इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स. फिर अपने को वो सब थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग होता है. वी विल हैव टू असाइन थ्रेड्स टू ईच ड्राइवर, आधे टाइम ये, आधे टाइम ये, आधे टाइम ये. डोंट गो इनटू दिस. सो हो गया, यूजर इज लॉग्ड इन. आपके पास कितना मिनट अभी और? क्रोम कैसे यूज क्रोम ये सिर्फ पाथ दिया मैंने सेम फोल्डर में, तो ये पाथ नॉर्मली में, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम अलग दिया है. हाँ नीचे इसका क्रोम ड्राइवर ये अलग दिया. हाँ ये, और ये सेम है, सिर्फ क्रोम ड्राइवर का. वैसे मैं आई करूंगा तो आई हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर करके है वो. आपके पास कितना टाइम है? ठीक है.
अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो, एंड वी विल यूज सम अदर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में. अब तो now you see my test cases are if I want to run into Chrome driver, so मैं क्या कर रहा हूँ, Chrome driver कर रहा हूँ, फिर मुझे Firefox पे करना है तो फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, फिर मुझे आई पे करना है तो कुछ और कर रहा हूँ. So what I can do, instead of changing it every time, I can write some if conditions. if मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, जो वेरिएबल मैं बाद में एक्सटर्नली पास करूँगा. अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कि स्ट्रिंग ब्राउज़र, ठीक है, और उसका ब्राउज़र का वैल्यू मैं अभी कुछ नहीं देता, ठीक है. इफ browser equal to ch equals ch तो driver equal to new Chrome driver. Else if तो driver equal to Firefox driver, else driver equal to new int. So what I did, I wrote if conditions, and based on what value I give to this browser, only one particular browser will be selected. So if I give value of browser equal to ff and run this test case, so this will automatically run into my Firefox. So to run a particular test case on a particular browser, what I'm supposed to do, only change this value, ff का ch या ie मुझे करना है. सिंपल इफ कंडीशन यूज किया मैंने, बट आई हैव मेड माई लाइफ अ बिट इजियर. अब तुमको सिंटेक्स याद करने का जरूरत नहीं है, अब तुमने एक बार लिख दिया एंड इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, राइट. अब इमेजिन करो यही वैल्यू में ब्राउजर का एक्सटर्नली कहीं से रीड करके लेके आता, एक्सेल से, नोटपैड से, कहीं से, तब मेरा लाइफ कितना इजी होता. मुझे कोड में जाने का जरूरत नहीं है. क्लाइंट को एज ए क्लाइंट मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करना, जाके सिर्फ वो फाइल में एक टेक्स्ट. दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग फ्रेमवर्क. हमने सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी हर बार याद रखने का जरूरत नहीं है. मैंने एक बार सेट कर दिया, वो हो गया. नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट केस रन करूंगा तो मुझे वापस नहीं याद रखना. मुझे ब्राउजर चेंज करना है, आई जस्ट नीड टू चेंज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. ये दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग फ्रेमवर्क. सो अगला स्टेप यही होगा अपना कि हम उसको एक्सटर्नलाइज करेंगे. इजी कैसे कर सकते हैं अपना लाइफ. तो बार बार मुझे वो कोड लिखने का जरूरत नहीं है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, 5 मिनट्स. सर एक वो ब्राउज़र ऊपर भी लिख सकते हैं. हाँ, ये कहीं पे भी लिख सकते हैं. बिफोर दिस इफ कंडीशन ये कहीं पे भी लिख सकते हैं. जो आपने ऊपर नल लिखा है उधर. हाँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट सेकंड टेस्ट केस. अब मैंने लॉगिन लिख दिया, अब मैं रजिस्ट्रेशन का टेस्ट केस लिखना चाहता हूँ.
से वो क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे एक नया क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एक अलग मेन मेथड होगा, और अभी मुझे वो मेन मेथड में सब कुछ लिखना पड़ेगा। समझा? ऐसे जितने टेस्ट केसेस उतने क्लासेस। अब मुझे रन करते टाइम तो लेकिन क्या है, मैं एक टाइम पे एक ही क्लास रन कर सकता हूँ, एक ही मेन मेथड रन कर सकता हूँ एक टाइम में। मल्टीपल सेलेक्ट करके रन एज जावा प्रोग्राम नहीं कर सकता, जावा एप्लीकेशन। तो हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे, वी विल इम्प्लीमेंट टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी में वी विल नॉट हैव दिस मेन मेथड। एक क्लास में वी विल बी एबल टू राइट मल्टीपल टेस्ट केसेस। इन्वोक पॉइंट डायरेक्टली मेथड, तो उसका एनोटेशन होता है @टेस्ट। तो जिसको @टेस्ट दिया है हमने एनोटेशन, वो टेस्ट केस होगा। उसका एक एनोटेशन होता है बिफोर टेस्ट और बिफोर मेथड। तो अभी अपना ब्राउजर इनिशियलाइजेशन का जो काम है, हमने न्यू ड्राइवर किया, वो सब किया, दैट शुड बी बिफोर योर टेस्ट केस स्टार्ट्स। तो बिफोर योर टेस्ट केस स्टार्ट्स यू नीड टू हैव योर ड्राइवर ओपन। तो वो हम लोग बिफोर टेस्ट में देंगे, ड्राइवर ओपन एंड URL ओपन, वो हम लोग बिफोर टेस्ट में देंगे। आफ्टर टेस्ट व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्विट द ड्राइवर, क्लोज द ड्राइवर, वो हम लोग आफ्टर टेस्ट में देंगे। सो बिफोर टेस्ट के पहले, टेस्ट के पहले हर बार बिफोर वाला मेथड रन होगा और हर बार एक ब्राउजर खुलेगा। आफ्टर के बाद हर बार ब्राउजर अपने आप क्लोज होगा। तो वो हम मेथड ऊपर के डिफाइन कर देंगे, वो मेथड हम ऊपर डिफाइन करेंगे। That will be second part of building the framework. तो अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा है, हम लोग इसको एक्सटर्नलाइज करेंगे। ये लॉगिन लिंक जो मैंने बताया ना, ये वाला जो, इसको भी हम लोग एक्सटर्नलाइज करेंगे। इसको हम लोग एक अलग क्लास फाइल में लिखेंगे और इसको हम लोग वहां से रीड करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे ना, सभी एक बात हम ऐसे करेंगे। हाँ, तो हम लोग का मोटिव क्या है पता है क्या, अगर मुझे कोई एरर आया एंड दैट एरर सेज दैट एलिमेंट नॉट फाउंड, तो मेरा पहला स्टेप शुड बी to check whether my XPath or locator is correct or not. So मुझे हर बार मेरा टेस्ट केस का फाइल खोलने का जरूरत नहीं है। I am organized now, my locator is separate, my test cases are separate, जिसमें मैं @test लिखूंगा। उसके reusable methods होंगे, that will be separate. तो मेरे टेस्ट केसेस जो है will only call my reusable methods. समझा? My reusable methods will use actions which are Selenium actions, लोकेटर्स जो मैंने किसी और क्लास फाइल में लिखे हैं, एंड इट विल कंबाइन ऑल दोस थिंग्स। तो जब मुझे मॉडिफाई करना होगा, अगर मेरा डेटा गलत है तो मुझे पता होगा मुझे डेटा जाके चेंज करना है। मेरा लोकेटर नहीं मिला तो मुझे पता है मुझे लोकेटर वाला फाइल में चेंज करना है। मेरा स्टेप गलत हो रहा है कुछ, तो मुझे पता है मुझे रीयूजेबल मेथड में चेंज करना है। और मेरा ब्राउजर का इनिशियलाइजेशन फेल हो रहा है, या क्रोम की जगह फायरफॉक्स पे रन हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, तो आई नो कि मुझे टेस्ट केस का फाइल में जाके चेंज करना है और @बिफोर मेथड में करना है। तो ये सब अप्रोच जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Let her go and then we can start practicing. So आज के लेक्चर को मैक्सिमम प्रैक्टिस टाइम देते हैं, एंड इसके बाद के लेक्चर्स को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, बट घर पे जाके असाइनमेंट। सो नेक्स्ट जॉब फॉर यू शुड बी टू राइट रजिस्टर, एंड दैट इफ कंडीशन शुड बी इन सम अदर क्लास, सो दैट वो CH का जो वैल्यू है, CH क्रोम ब्राउजर है, वो किसी और क्लास से रीड करवाना है तुमको, और ड्राइवर इनिशियलाइजेशन भी दूसरे क्लास से। नहीं समझ रहा, एक बार यहाँ पे होएगा तो फिर समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करो। टीवी बंद करना पड़ेगा मुझे। उधर है वैसे टीवी का जरूरत नहीं ना, हो गया ना। जिसको प्रैक्टिस करने का है मेरे मशीन पे, उसको इधर आना पड़ेगा। तो मैं असाइनमेंट अभी आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिस लास्ट लेक्चर मैं असाइनमेंट बताता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है टाइप कि आपको भी नहीं कुछ है तो आप भी पूछ लो,
आपका 5 मिनट ब्रेक चाहिए। हाँ चलेगा ना, देखिए ब्रेक लेते मेरे को ब्रेक। हेलो बट कुछ थोड़ा बहुत समझा क्या सेलेनियम